So let us start this chapter revision, the chapter on system devices. In this chapter, many devices are studied. First of all, certain definitions are to be revised very precisely. They can be asked in the objective type. Like first definition is, what is a sensor? It is a device which converts a physical parameter into a electrical output. So different options will be there. Then what is a transducer? It is converting one form of energy into another form of energy. And we will consider various types of transducers later in this chapter. Then what is a actuator? It is a device which converts an electrical signal into a physical output. That can be certain motion. So these three types will be discussed in detail in the upcoming pages. Then we have already covered this chapter. You will recall these notes one by one. This is the example of a sound transducer. Like microphone is connected here, then this is the loudspeaker. So what is the function of a microphone? Like right now I have connected the microphone to the laptop. So what is it doing? It is simply converting my voice, this is the voice signal, to, and it is giving it to the as a output. So this is a input device. So this input device is microphone. Then there is an amplifier. Then loudspeaker is acting as a output device. So two types of devices are there, as you can see in this table. Input devices are there and output devices are there. Input devices, we have to study this potentiometer, encoder, LVDT. Output devices, motor. What are these measuring? So these are measuring the position of the object which is under consideration. ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो कि उसने कितनी पोजीशन मूव की है. देन दीज आर द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, पोटेंशियोमीटर, एनकोडर, एलवीडीटी. देन टैको जनरेटर इज studied to measure the speed of the rotating shaft. Apart from it, other objects are also there. Okay, like for measuring temperature, which type of devices are there. Then output devices, this is heater. Heater is giving the heat as a output element, right? In winters we are using the heater. Why we are using the heater right now? After some time we will use it because it is giving heat as a output device. So it is a actuator. The definition is simple. It is simply converting one form of electric signal to a physical output. So this is just for the viva purpose. This table is just for the viva purpose. You will have a look. These four types of the devices are in detail. Okay, so three definitions were discussed: sensor, transducer, actuator. You will revise it and you may get an objective question out of this, that it is converting this energy into this energy. Then this is for your viva purpose. What all are the input devices, sensors, what all are the output devices, actuators, everything is given here. आवर फोकस इज ऑन सीएनसी मशीन्स. ठीक है, हम सीएनसी मशीन्स पढ़ रहे हैं. तो अब सीएनसी मशीन्स की पोजीशन को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम कौन से डिवाइसेस अटैच करते हैं? फीडबैक डिवाइसेस. दीज आर द डिवाइसेस. देन व्हाट इज एक्टिव सेंसर? वी कैन नॉट स्टार्ट द चैप्टर डायरेक्टली. ठीक है, उस दिन भी हमने चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया था. पहले ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए. एक्टिव सेंसर मीन्स विच रिक्वायर सम एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट द दैट डिवाइस. इट कैन बी एक्साइटेशन सिग्नल. ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मर आपने स्टडी किया है फिजिक्स में 10th में. ठीक है, देन इट इज रिक्वायरिंग सर्टेन एसी एक्साइटेशन सिग्नल फॉर इट्स ऑपरेशन टू स्टार्ट. वी विल हैव अ LVDT device and we will watch it. Then this is a पैसिव सेंसर. व्हाट इज अ पैसिव सेंसर? विच डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए अगर आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है, देन इट इज अ एक्टिव सेंसर. ठीक है, अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल पावर नहीं देनी पड़ रही है, देन इट इज अ
passive sensor. Examples can be many. Then what is a analog sensor? What is a digital sensor? Analog sensor is the device which is giving the output as an analog form. What is the analog form? It generates a continuous output signal which is proportional to the quantity being measured. ठीक है, एनालॉग फॉर्म में आपको आ रहा है, जैसे आपने वॉचेस जो अभी हम यूज कर रहे हैं टाइम देखने के लिए, ठीक है, वो एनालॉग आउटपुट हमें देती हैं. एंड द thermometer device which we use. So when we insert the thermometer device, then the temperature starts increasing gradually. ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, and as the quantity being measured is changing, then the output signal is varying. So this definition is suitable there. So it is an analog device, analog sensor. Okay, it is sensing the temperature and it is giving output that is continuously varying. ठीक है, and if you have fever, then it is giving certain another value. Then if you don't have fever, it is giving certain another value. After 1 minute, it is giving certain another value, and at the starting it is showing some another value. So output हमेशा वेरी कर रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी जो आप मेजर कर रहे हो वो चेंज कर रही है. Then what is a digital sensor? The name itself suggests that the output is digital. Again, objective type. Which type of output do you get in the digital sensor? Analog, digital, and two more options are there. So you will click the correct option. So this is the example of this thermometer which I studied and told to you. Then digital sensor. Now this is the topic to be studied in detail. Tachometer. A complete 4-mark question is there in the BT exam that explain the working of a tachometer with the help of a diagram. So we will take it as a revision. Meanwhile, in the chat you can write which topics are to be taken for revision, because this is a very large chapter. The topics which you are writing, we will take it first, then we will wind it up, and we will take another lecture maybe tomorrow or after tomorrow, or maybe there is a no need for that revision. ठीक है, आज ही हम सभी revision complete कर दें. So revision means that you have studied that chapter earlier, now you are attending this class. So then we are revising it in a faster manner. That tachometer, it is a digital sensor. You can write in the chat box. Okay, I will. Okay, no message is there right now. We will continue this. Tachometer, it is a digital sensor. So first of all you have to define the type of the device you are studying. ठीक है, जो भी टाइप आप स्टडी कर रहे हो, जैसे टैकोमीटर को आप स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप बताओगे ये कौन से टाइप का है, सेंसर है या ट्रांसड्यूसर है या डिजिटल है या एनालॉग है, ठीक है, रेजिस्टिव है. सो इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन इटसेल्फ एंड इट इज टफ ऑल्सो, बिकॉज इफ यू डोंट नो द डेफिनेशंस, दीज डेफिनेशन, ये जो आपको 6 डेफिनेशंस बताई हैं, यही नहीं आती तो आप किसी भी डिवाइस को कितना भी पढ़ लो, ठीक है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लिखा हो, लेकिन आप ये आंसर नहीं कर सकते फिर ये कौन सा टाइप है, क्या ये ट्रांसड्यूसर है, देन क्या ये एक्चुएटर है या ये सेंसर है, ठीक है, और क्या ट्रांसड्यूसर भी सेंसर हो सकता है. तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में. दैट्स व्हाई दिस विल बी टफ टू आस्क, बट not that much tough. If we are familiar with the definition, then we can answer it. Let's come back to this tachometer. It is a digital sensor. Why? Because it is giving digital output. अभी हमने definition में study किया था, ठीक है, तो एक आंसर आपने already कर दिया. ओके, अंकुश इज राइटिंग LVDT को रिवाइज करा दीजिए और ओपन लूप और क्लोज लूप को. वी विल टेक इट फर्स्ट, ठीक है. इसी तरह से कोई दूसरा स्टूडेंट अपना पॉइंट यहाँ लिख सकता है. यू आर फ्री टू राइट. LVDT करना है और एक पोटेंशियोमीटर मैं इसकी बात करा दूंगी, ठीक है. तो टैकोमीटर को जल्दी फिनिश करते हैं. इट इज, सबसे पहले कोई भी डिवाइस आप पढ़ रहे हो, चाहे LVDT चाहे टैकोमीटर, उसका टाइप बताओगे. टाइप बताना ही एक मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है. सो बट नाउ यू आर able to answer this. Why it is a digital sensor? Reason explain करना आना चाहिए for your BT exam. Objective में सिर्फ click करना आना चाहिए आपको correct option. Okay. Then this is used to measure. What is the function of the device is the second part. क्या function है इस device का? It is used to measure the speed of the rotating disc. कोई भी rotating disc है या disc नहीं है तो कोई भी rotating shaft है, जैसे कि इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो. This is the shaft. इस shaft की rotation, ठीक है, कितनी स्पीड पे हो रही है, तो वो आपको मेजर करना है किसी पॉइंट पे. देन यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस टैकोमीटर. आप कनेक्ट करोगे
then you can measure this. So this is the function. ठीक है. सेकंड थर्ड पॉइंट आपको क्या स्टडी करना है कि वर्किंग क्या है इस डिवाइस की. We will zoom this page first of all because it is very okay. Now it is visible to you. ठीक है, थोड़ा सा हमने जूम किया है. सो वर्किंग, इन वर्किंग यू विल राइट दी प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग इन एक्चुअल. ठीक है, अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप वर्किंग एक्सप्लेन करोगे. सो द आउटपुट ऑफ दिस सेंसर इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले ऑफ अ डिजिट which is representing the speed of the shaft in number of revolutions per second. जैसे अभी right now display 8 आ रहा है. ठीक है, तो 8 rpm per second or minute what the display is giving. So this will be the working part. This is the working. ठीक है, ये आप further read करोगे what is the working of this. Then you can read it from here. A disc is fixed with a rotating shaft. The disc is having a number of slot. Output pulse is there. The pulse is then sent to the counter. Okay. Variable. Now we will take this in a 10 to 15 minutes time slot. ठीक है, we have to divide this 2 hour lecture in time slot. LVDT 15 minutes, potentiometer 15 minutes, then another device, and if you write certain query then that is to be given 15 minutes. Okay. Tachometer you will revise on your own. I have not described it fully. We will describe this fully. LVDT क्या होता है, ठीक है, और इसकी वर्किंग क्या है. First of all you will describe which type of device is this. ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन क्लियर है then you can write which type of device is this. So function क्या है, that LVDT linear variable differential transformer is a position sensor which gives the position feedback. So the function it is giving the position value. ठीक है, now how is it giving the position value in CNC, where is it is used, because we are studying that in CNC machine work table is moving from one position to another position, and if it is moving then what is the value, what is the movement value. ठीक है, कितनी वैल्यू से वो मूवमेंट हुई है. how will we measure it. ठीक है, we cannot use a scale. then what will we use, we will attach a certain another device. LVDT हम वहाँ attach करेंगे. ठीक है, we cannot use scale, measuring device, vernier caliper, ये सब devices हम वहाँ use नहीं करेंगे. we are simply using the another devices, और हम उसे CNC मशीन के साथ फिट करेंगे और रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो LVDT में आप 4 वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हो, लीनियर, वेरिएबल, डिफरेंशियल, ट्रांसफॉर्मर. वी विल टेक द मीनिंग हेयर वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर. लीनियर मीन्स इट इज मेजरिंग द लीनियर पोजिशन. राइट, यू विल, these are the objective questions. Why it is linear? 4 options are given to you and we do not know the answer, but the answer lies in the word itself. The linear means that the linear position is measured. Right, you can write in your copy also if you are having any notes copy or a rough page, that linear position is measured. That's why this linear word is used. Then why variable word is used? Variable word क्यों use किया गया है? Then variable means the movable core is there. You can see in this diagram, this is a core. This core is moving and a fixed coil is there. This fixed coil is there. So as the core is moving, fixed coil is there, the output of the LVDT changes. So that's why the output is variable. So again we can write a box that the output is variable. Output is variable. ठीक है, अगर आप इतना भी लिख रहे हो या करेक्ट ऑप्शन क्लिक कर रहे हो, चूज कर रहे हो, then it is correct that the output is variable. That's why it is known as variable. Then we will see in the working कैसे आउटपुट वेरी करता है, एक जैसा आउटपुट क्यों नहीं रहता है. ठीक है, ये अभी हम स्टडी करेंगे, बट ओनली टेक द टर्म्स फर्स्ट. देन द टर्म डिफरेंशियल इज यूज्ड. व्हाई इट इज डिफरेंशियल. डिफरेंशियल शब्द यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, बिकॉज the output is differential. Again you can write in the box that the output, we are writing short
output OP is variable. ठीक है, आउटपुट इज वेरिएबल एंड ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. आउटपुट इज वेरिएबल, आउटपुट इज डिफरेंशियल. डिफरेंशियल मीन्स द डिफरेंस. सो डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज इज गिवन एज अ आउटपुट. सो दिस डिवाइस, ये डिवाइस कोई भी आपको एक सिंगल आउटपुट नहीं देता, एक सिंगल वैल्यू नहीं देगा. 5 2 3 1 ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कभी. ठीक है, आपको दो वैल्यू मिलेगी 5 2. देन यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यू. डिफरेंस ऑफ दो आउटपुट जब आप ले रहे हो, दैट इज द डिफरेंशियल आउटपुट. Okay, so you will describe it that this is differential because the output is differential. And output differential होने का मतलब क्या है? That the output is not a single output, it is not a single value. Then what is it? It is developing two output. ये दो आउटपुट हमें देता है, और जो एक्चुअल आउटपुट अगर आपको निकालना है तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू आउटपुट ऑफ द टू सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, ये वर्किंग में भी आएगा कौन से दो वाइंडिंग्स हैं. लेकिन अब आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर कर दिए कि लीनियर वर्ड क्यों आता है, वेरिएबल क्यों आता है, डिफरेंशियल क्यों आता है. अच्छा, एक फिर भी रह गया, ट्रांसफॉर्मर वर्ड क्यों आता है यहाँ पे. दिस इज द ट्रांसफॉर्मर वर्ड. ये सब अभी तक जो वर्ड्स थे वो सारे नए थे, आपको पता नहीं थे, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर वर्ड नया नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो शायद. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? दैट इज अ डिवाइस विच इज हैविंग AC इनपुट एंड AC आउटपुट. ठीक है, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग, वी आर टेकिंग इट एज अ फास्टर पेस पे ये लेक्चर हम ले रहे हैं. AC इनपुट भी है और आउटपुट में भी AC ही मिल रहा है. ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम होता है ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर यू विल डिफाइन इट. ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, व्हाई इज इट अ ट्रांसफॉर्मर, देन यू कैन राइट दैट ट्रांसफॉर्म इट इज अ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज इट इज गिविंग AC इनपुट एंड AC आउटपुट. राइट, सो इनपुट AC, कैप्स लॉक ऑन करके AC आएगा. ठीक है, AC इनपुट ऑल्टरनेटिंग AC एंड आउटपुट इज ऑल्सो AC. Then we will come on the working part. अभी तक मैंने आपको बताया कौन सा टाइप है. टाइप में और आप क्या देख रहे हो? That it is a position sensor. ठीक है, ये पोजीशन को सेंस कर रहा है. ठीक है, तो इसका नाम क्या बन गया? पोजीशन सेंसर बन गया, जो अभी मैंने आपको यहाँ डेफिनेशंस क्लियर कराई थी. ठीक है, आप ये वाली डेफिनेशन अगर नहीं पढ़ते, आप कहते हो कि ये वाली डेफिनेशन हम नहीं कर रहे याद, तो ये बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. क्योंकि सेंसर की डेफिनेशन थी, इट कन्वर्ट्स अ फिजिकल पैरामीटर इनटू अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट. ठीक है, तो जिसे ये मीनिंग ही नहीं पता है, अब वो बार बार कंफ्यूज रहेगा ये कि टैकोमीटर क्या सेंसर है. ठीक है, वो हमेशा सोचेगा देन क्या LVDT सेंसर है, लेकिन उसे पता है वो फिजिकल पैरामीटर को कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये कर रहा है एक फिजिकल पैरामीटर को कन्वर्ट, किस में कर रहा है? फाइनल आउटपुट दे रहा है इलेक्ट्रिकल. तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट ही देगा. कैसे देगा? जब तक वर्किंग नहीं पता होगी, फंक्शन नहीं पता होगा. ठीक है, तब तक ये लाइन को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पोजीशन सेंसर ये सेंसर है या नहीं. ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, हाँ ये एक सेंसर है बिकॉज इट इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ द सेंसर. इट इज गिविंग द फिजिकल पैरामीटर, कन्वर्टिंग द फिजिकल पैरामीटर इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट. हमेशा दो चीजें याद रखोगे, इनपुट में क्या मिल रहा है, इनपुट में क्या जा रहा है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है. ठीक है, अगर इनपुट फिजिकल पैरामीटर है और आउटपुट इलेक्ट्रिकल है तो सेंसर हो सकता है. अगर इनपुट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जा रहा है तो ट्रांसड्यूसर है. बहुत ही रैंडम डेफिनेशन है, बहुत तरीके के ट्रांसड्यूसर आगे पढ़ने हैं हमें. एक्चुएटर क्या है? सिंपली इनपुट में आपने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही रखना है और उसे फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करना है. तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेंसर का अपोजिट हो रहा है. ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन याद करने के बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग. अदरवाइज इट इज वेरी टफ चैप्टर. ठीक है, तो अब LVDT आपको समझ में आ गया दैट व्हाई इज इट इज अ पोजीशन सेंसर. पहली बात तो सेंसर क्यों है, यू कैन डिस्क्राइब इट. देन व्हाई इज इट अ पोजीशन सेंसर, बिकॉज इट इज सेंसिंग दी पोजीशन. तो पोजीशन वर्ड भी आपको समझ में आ गया. कुछ वेलोसिटी को सेंस करते हैं कुछ डिवाइसेस, अभी पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो वो वेलोसिटी सेंसर है, ये पोजीशन सेंसर है. और ये कौन से टाइप का सेंसर है, एक्टिव है या पैसिव है? यू कैन आंसर इट. ठीक है, जब वर्किंग बताएंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है. मीनवाइल अगर आपको आंसर आता है, मैंने जो एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन बनाई है आपको ऊपर बताई है. एक्टिव डिवाइस क्या होता है? जिसे कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत है रन करने के लिए. ये LVDT का डायग्राम है. ठीक है, और इस पूरे डिवाइस को रन करने के लिए, इसकी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए आपको बाहर से कोई पावर देनी पड़ती है, तब तो ये एक्टिव डिवाइस है. ठीक है, अब या पैसिव डिवाइस है, इसे बाहर से कोई पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, अगेन इट इज अ टफ क्वेश्चन टू आंसर. यू आर
if you are not understanding the working and the definition of the active and passive. ठीक है, तो पहले वर्किंग इसी क्लियर करते हैं. दिस इज द मेन डायग्राम, LVDT वर्किंग यहाँ लेबल है. ठीक है, देन देयर इज वन PDF file already given in which you can see the same diagram. This is the coil. So this one is the core. There is one primary winding. ठीक है, ये जो प्राइमरी कॉइल लिखा है इसे प्राइमरी वाइंडिंग भी बोल सकते हैं. इस तरह से जो होती है वाइंडिंग्स. वायर इज बीइंग प्लेस्ड एज अ कॉइल. ठीक है, कॉइल क्या होती है? एक वायर को जब आप इस तरह से रोटेट करते हुए प्लेस करते हो, दैट कॉइल पार्ट इज फ्रेम्ड. ठीक है, सो दिस इज अ प्राइमरी कॉइल जो अभी आपने एक रेक्टेंगल से दिखाई हुई है. इनफैक्ट ये एक कॉइल है, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं. तो जो फिजिक्स में आप बनाते हो डायग्राम, वो डायग्राम्स भी यहाँ पर वैलिड हैं, लेकिन कोई भी एक डायग्राम से आप इसे समझाओ दैट देयर इज अ वन प्राइमरी वाइंडिंग, वन प्राइमरी कॉइल. इस प्राइमरी कॉइल में AC एक्साइटेशन सिग्नल दिया जाता है. ठीक है, यानी आप इसे AC से एक्साइटेशन दे रहे हो टू रन दैट पार्ट. देन 2 सेकेंडरी कॉइल्स आर देयर. दिस इज कॉइल नंबर 1. एक सेकेंडरी वाइंडिंग ये लगी हुई है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग ये लगी हुई है. ये जो इन्होंने हैच करके दिखा रखा है, एक्चुअल में ये ऐसे कॉइल हैं. ठीक है, रोटेटिंग कर रखी है वायर्स को ऐसे. ठीक है, सो कॉइल नंबर 2 इज देयर. इन दोनों कॉइल से आप क्या ले रहे हो? वी आर गेटिंग द AC आउटपुट. सो सिंपली वन AC इनपुट इज गिवन. एक कह सकते हो आप इस पार्ट से आप AC इनपुट दे रहे हो प्राइमरी कॉइल से. ठीक है, AC एक्साइटेशन इज गिवन एंड फ्रॉम दीज टू कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, यू आर टेकिंग द आउटपुट. ठीक है, कॉइल नंबर 1 से आउटपुट एक आया, आउटपुट नंबर 1, 2 से दूसरा आया, आउटपुट नंबर 2. दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा. तभी इस पूरे डिवाइस का नाम क्या है? डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. देन इट हैज हाउ द वर्किंग विल स्टार्ट. अभी आपने बताया ये 3 पार्ट हैं. एक और पार्ट यहाँ पर जो प्लेस है, ठीक है, वो क्या है? दिस कोर इज मूविंग. दिस कोर इज नॉट फिक्स्ड इन पोजीशन. ठीक है, कॉइल्स तो अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, एक जगह आपने अटैच कर दी तो ये पार्ट फिक्स हो गई है यहाँ पे. बट दिस कोर इज नॉट फिक्स्ड, दिस कोर इज मूविंग. सो दिस कोर एंड मूव हेयर देयर. ठीक है, आप इसे ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन कर सकते हो. मीनवाइल क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 तरह के एरोज लगाए गए हैं, ये जो मोशन दिखाने के लिए लगाए गए हैं. सो ये आपस में 2 मोशन दिखाए गए हैं. ठीक है, सो इट कैन मूव टू एंड फ्रो. 2 एरो लगाने का मतलब क्या है? ये आगे पीछे जा सकता है. अब इससे क्या क्लियर हो रहा है आपको? दैट इन दिस पार्ट वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द कॉइल. somebody is writing active sensor, passive sensor. okay, we will take it. Anuj is writing the answer because इसमें हमने एक्साइटेशन दी है, या पैसिव है, ठीक है, या नहीं है. तो इस तरह से आपको सोचना है. सो somehow he is thinking about the answer. now what is happening when this core is moving? ठीक है, अभी आपने वर्किंग भी स्टार्ट कर दी. पहले कंस्ट्रक्शन बताइए. वर्किंग स्टार्ट करने के लिए फिर से मैं वो पॉइंट रिपीट कर रही हूँ. प्राइमरी कॉइल को एक्साइटेशन देनी है. एक्साइटेशन देते ही क्या होगा? आप इस कोर को मूव करोगे. अगर when this core is moving, then what will happen? 3 different position will be there. ठीक है, एक यहाँ इस डायग्राम में, इस किसी भी बुक में वो लोकेशंस शोन नहीं है. ठीक है, तो हम भी एक टाइम के लिए शो करते हैं. जैसे ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है. सो व्हेन द कोर इज मूव्ड, ओके, वी विल टेक दिस पेन इन राइटिंग पार्ट. ठीक है, अभी आप कोर देख रहे हो, ये रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ मूव करके इस पार्ट पे, कोर नंबर 1 के पोजिशन के पास. ठीक है, सो नाउ द कोर इज प्लेस्ड नियर द कॉइल नंबर 1. व्हाट विल हैपन? दूसरा तरीका इस बात को कहने का क्या है? व्हेन द कोर इज एट द मैक्सिमम लेफ्ट पोजीशन, बिकॉज दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम. सो व्हेन द कोर इज एट द मैक्सिमम लेफ्ट पोजीशन, तो उस समय क्या होगा? कोर इज नियर द कॉइल नंबर 1. सो व्हाट विल हैपन? कॉइल नंबर 1 के पास जो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मोर वैल्यू का रहेगा. more magnetic flux will linkage will occur with this coil number 1. ठीक है, इस कॉइल से ज्यादा फ्लक्स का लिंकेज होगा क्योंकि ये इसके पास है. ठीक है, इससे दूर चला गया है. अभी ये रेक्टेंगल पूरा बीच में है, वो हर चीज के पास है. ठीक है, सेंटर में भी है, कॉइल 2 के पास भी है, 1 के पास भी है. सो if it is coming in the left position, then what will happen? This 1 value will increase and the voltage induced, whenever what is happening, this is completely
मैग्नेटिक पार्ट जो आपने पढ़ा हुआ है फैराडेज लॉज, दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल इट इज चेंजिंग। ठीक है, अगर कोई किसी भी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, लिंक्ड होता हुआ वो चेंज करता है, ये कॉइल है एक, ठीक है, और उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें लिंक है वो चेंज करता है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, ये फिजिक्स है जो हमने यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रखे, रेक्टेंगल बना रखे हैं बस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप फ्लक्स की वैल्यू चेंज करते हो इस कॉइल के अंदर, तो एक ईएमएफ ई या ईएमएफ वी की वैल्यू चेंज करती है। तो अब वो वैल्यू कैसे आएगी, आपको यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो दैट कॉइल नंबर 1 में मान लो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है V1, ठीक है, और इधर वैल्यू कॉइल नंबर 2 में हो रही है V2। ठीक है, तो सर्टेन वैल्यू विल बी देयर ऑलवेज इन बोथ दी कॉइल। ठीक है, लेकिन जब कोर के पास है कॉइल नंबर 1, ठीक है, सो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी और V2 की वैल्यू कम होगी। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द कोर इज एट द मैक्सिमम लेफ्ट पोजीशन, आउटपुट V जो O आपको मिलता है दैट इज V1 माइनस V2। ठीक है, V1 माइनस V2, अभी मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ क्लियरली, ये पेन नहीं वर्क कर रहा है, V1 माइनस V2। देन व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द कोर इज एट, वी आर इरेजिंग दिस वैल्यू। Now you write in the chat box what will happen when the core is at the maximum right, maximum right position पे हो जाएगा तो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा मींस V2 will be more and V1 will be less। ठीक है, सो आउटपुट की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी V1 माइनस V2। ठीक है, मैक्सिमम राइट में आपको मिलेगी V2 माइनस V1। ठीक है, देन अगर ये नल पोजीशन पे है, यानी कि अगर ये सेंटर पर ही है कॉइल या कोर, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, V1 माइनस V2 विल बी 0 बिकॉज बोथ दी वैल्यूज आर सेम। सो वी हैव टू डिस्क्राइब इट इन अ वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, इसलिए ये तीनों डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ लिखी हुई नहीं मिलती हैं, आपको सीधा वर्किंग पर ही समझा दिया जाता है। If you look at this line, the movable core provides a magnetic linkage between the primary and the secondary winding. This is true. The maximum voltage is produced when the core is near the secondary winding, and when it is away from the secondary winding, then the voltage is minimum. ठीक है, तो यहाँ इन्होंने नंबर की बात नहीं करी कि कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग, कौन सी मिनिमम कब है, मैक्सिमम कब है, लेकिन आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप अपने आंसर में ये लिख भी सकते हो। ये जो इन्होंने डायग्राम बनाया है V1 माइनस V2, ये एक पर्टिकुलर केस के लिए बनाया है। हम इसे V1 माइनस V2 की जगह V2 माइनस V1 भी लिख सकते थे। नाउ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स फॉर विच आउटपुट, फॉर विच टाइप दे आर राइटिंग, कोर इज एट द लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट पोजिशन। ठीक है, आप लिखो कोर इज एट लेफ्ट पोजिशन। ठीक है, कोर जब लेफ्ट पोजीशन पर है, ठीक है, तो क्या आपको ये आउटपुट मिलेगा, V1 माइनस V2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन करा है आपको। इफ मिलेगा, ठीक है, अगर मिलेगा तो आप लिख सकते हो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो आप ये, अभी हम ज्यादा क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे क्योंकि लेक्चर की पेस बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं खुद ही आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोर इज एट लेफ्ट, देन पोजीशन इज the voltage EMF induced is V1 minus V2. ठीक है, so this is true because the coil number, secondary coil number 1 is near to the core, so V1 की वैल्यू ज्यादा होगी, V2 की कम होगी। तो ये एक डायग्राम एक पर्टिकुलर केस के लिए है, when the case is that core is at the left position. Then दूसरा केस क्या होगा, आप सिंपली ये 3 पॉइंट लिख दो ABC करके अपने आंसर में, then nothing is left in this. core is at right position, ठीक है, वो core अगर राइट पोजिशन पे हो गया है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, क्या आउटपुट आपको सेम मिलेगा, देन आउटपुट विल नॉट बी सेम। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, V2 माइनस V1। ठीक है, सो इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू राइट। जो मैं बोलना चाह रही हूँ वही तीनों स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिख दिया। एंड व्हेन कोर इज एट द सेंटर, ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सेंटर मींस दी नल पोजीशन, दो नाम है, सेंटर भी बोल सकते हो, नल पोजीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, V2 इक्वल टू V1। ठीक है, तो जब आप दोनों आउटपुट का डिफरेंसेस लोगे, ठीक है, तो वो सेम ही आएगा, सेम वैल्यूज को माइनस कर रहे हो, तो V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ 0 लिखोगे। ये तीन आपको अपने आंसर में ऐड करने हैं। तो इस डायग्राम के साथ, इस ब्लॉक के साथ
आप ये तीनों चीज लिख सकते थे। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज एक्सप्लेन करी है, तो स्टूडेंट्स को इंप्रेशन माइंड में ये जाता है कि ये एक ही आंसर मिलता है हमेशा v1 माइनस v2, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये तीन आंसर्स में से कोई सा भी मिल सकता है डिपेंडिंग क्या कोर की पोजीशन है। ठीक है, तो हमारा भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये 3 लाइनें लिखने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा है। ठीक है, बट योर आंसर इज कंप्लीट नाउ। नो टीचर विल डिडक्ट द मार्क्स कि स्टूडेंट ने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया आंसर, आधा लिख के छोड़ दिया v1 माइनस v2। अब उसने ये भी बताया v2 माइनस v1 कब होता है, v1 0 कब होता है, और अगर आप इसे ब्रैकेट में इसका रीजन लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका इसका रीजन लिख सकते हो यहाँ पे, कोर इज एट लेफ्ट पोजिशन v1 माइनस v2 क्यों है। ठीक है, आप वो रीजन यहाँ पे लिख दो, बिकॉज द कोर इज नियर टू सेकेंडरी कॉइल नंबर 1। ठीक है, तो 1 वाले के पास वोल्टेज v1 की वैल्यू ज्यादा है। देन इज एलवीडीटी क्लियर, राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, इतना आप लिख ही सकते हो चैट बॉक्स में। एलवीडीटी के बाद अब हम एक दूसरा डिवाइस पिक करेंगे। दीज 2 पेजेस आर फॉर द डिस्क्रिप्शन पार्ट, जो हमने कर दिए। यस, एनीवन कैन राइट ऑलरेडी। ओके, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, बट दिस इज फॉर योर रिवीजन, दिस इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम ये नहीं कह सकते आज हम अपने टाइम वेस्ट करने के लिए ही लेक्चर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एलवीडीटी क्लियर नहीं है, आपने उसे क्लियर किया और ये डायग्राम में आप अपने प्लेस कर दोगे, जहां पे भी ये कॉपी में डायग्राम बनेगा अब साथ में ये पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, पॉइंट्स कितने भी बना लो, जब तक समझ नहीं आएगा तो फिर एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, तो क्वेश्चन अब आपको नहीं रहा। ठीक है, अब ये कोर की पोजीशन मूव कर रही है इस डायग्राम में। ठीक है, ये आपने कॉइल बनाई हुई है, तो ये है एक सर्किट डायग्राम, ये जो पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है और ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या दिखेगा, वो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से प्लेस्ड है। अभिषेक इज एंटरिंग। ओके, नोबडी इज राइटिंग। इज एलवीडीटी क्लियर, राइट इट फास्ट। एटलीस्ट ये चीजें आप फास्ट लिखोगे, क्योंकि मैंने अपना 10 मिनट बोला था, मैंने 10 मिनट ही डिवोट किया है एलवीडीटी के टॉपिक पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्लियर नहीं है आप उसके अंदर लिख दोगे, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Or you simply write we can move on. Can we move on to the next point? LVDT के बाद। ठीक है, इतना आप लिखो, उस पर मूव ऑन करें, कौन से टॉपिक पे करें। ठीक है, इतना मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बता देती हूँ, एलवीडीटी कहाँ कहाँ यूज होगा। ठीक है, अब ये बताओगे आप कि ये सीएनसी मशीन्स में क्यों ये चैप्टर स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन होगा तभी तो ये सीएनसी मशीन्स में चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अदरवाइज नो नीड फॉर दिस एलवीडीटी। ठीक है, मुझे और आपको ये पता है, ये तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, एलवीडीटी हमारा सिलेबस नहीं था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन द पोजीशन। ठीक है, इन दी और द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू में क्या चेंज आता है। ठीक है, वो हमें सीएनसी मशीन में स्टडी करना है, और उस डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने के लिए एलवीडीटी को वहां पे पुटअप करना ही होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन जो आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, एटीएम। सो व्हेनेवर यू हैव टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ करेंसी बिल्स जो डिस्पैच होते हैं उसमें से। ठीक है, आपको डिटेक्ट करने हैं कितने नंबर ऑफ करेंसी बिल्स डिस्पेंस्ड हुए हैं उस एटीएम से, देन यू आर पुटिंग दैट एलवीडीटी। ठीक है, बहुत सारी अलग एप्लीकेशन भी हैं। देन सीएनसी मशीन्स में क्यों प्लेस हुआ है, ये रीजन आपने समझ लिया। एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसमें बहुत ही कम पावर कंज्यूम होती है, फ्रिक्शन लेस ऑपरेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें। यस, जितेंद्र इज राइटिंग अगेन सेम आंसर, गुड। पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है। सीएनसी में क्यों पढ़ रहे थे, पहला रीजन आपको ये बताना है। ठीक है, कोई भी डिवाइस, जिसने लेट ज्वाइन किया है, अभी अभी किया है, मैं उसे बता रही हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। कोई भी डिवाइस पढ़ेंगे आज, उसका सबसे पहले टाइप याद करेंगे, कौन से टाइप का वो है। ठीक है, क्या वो सेंसर है, क्या वो डिजिटल है, क्या वो एनालॉग है, या वो एक्टिव है या पैसिव है। ये आंसर करना बहुत मुश्किल होता है इवन फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कम ही रेज होते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपने बता दिया ये एक सेंसर होता है। ठीक है, तो आपने क्यों बताया, क्योंकि आपको डेफिनेशन क्लियर है। पोजीशन सेंसर है या नहीं, तो जितेंद्र ने लिखा हाँ ये पोजीशन सेंसर है, क्योंकि पोजीशन मेजर कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल आउटपुट आपने 2 तरीके की बातें यहाँ पे क्लियर कर दी। देन थर्ड पॉइंट आपने उसकी वर्किंग क्लियर करी है, फंक्शन बताया शॉर्ट में कि दैट इज इट इज मेजरिंग द पोजीशन ऑफ द और द डिस्प्लेसमेंट इन दी सीएनसी मशीन। ठीक है, वर्क टेबल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है आप उसे अटैच करने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, देन वर्किंग बताने के लिए पूरा डायग्राम बना के आप वर्किंग लिखोगे, जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो पूरे वर्किंग बता के ही होंगे। देन इट इज अ 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरी वर्किंग आपने बताई। इस पूरे डायग्राम में क्या मिसिंग था,
ठीक है, वो डायग्राम में ये मिसिंग था कि आउटपुट आपको किस तरीके से मिल रहा है, वो हमने ऐड कर दिया आज। V1 माइनस V2, V2 माइनस V1 और V1 0, 3 केस बनते हैं इसमें। ठीक है, एलवीडीटी का कोई एक केस लिख के आ गया, इसका मतलब उसने अपना 1 मार्क्स तो रिड्यूस वहीं पे करा लिया, क्योंकि उसने लिख दिया V1 माइनस V2, क्योंकि बुक में लिखा हुआ था V1 माइनस V2, तो उसने भी लिख दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसमें 2 पॉइंट्स आज 3 ऐड और करोगे कि ये 3 केसेस और हो सकते हैं। ठीक है, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन शॉर्ट में एकदम लिखोगे आप। जैसे यहाँ मैंने एक पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ है, वाई इट इज ब्लैंक, बिकॉज यू विल फिल दी एडवांटेज। मैंने ऑब्जर्व करा है आपकी जो JS नारंग बुक है उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो इस बुक से मैंने उसको क्लियर, इस बुक में है ही नहीं, वो मिसिंग है, तो आप यहाँ पे एडवांटेजेस अपने आप लिखोगे दैट इट इज फ्रिक्शन लेस इन ऑपरेशन। वाई इट इज फ्रिक्शन लेस इन ऑपरेशन, या फ्रिक्शन फ्री वर्ड यूज किया गया है वहां पे। क्यों यूज किया गया है? बिकॉज क्योंकि दोनों चीजें आपने देखी हैं, एक तो कोर देखा है, कोर ऑफ एलवीडीटी। ठीक है, एक और इसमें लेना पड़ेगा पेन से। ठीक है, तो ये जो कोर ऑफ एलवीडीटी था और एक कॉइल था, तो इस कोर में और इस कॉइल में कोई कांटेक्ट हुआ है, मैकेनिकल कांटेक्ट? ठीक है, इन्होंने टच किया, दोनों पार्ट्स ने नहीं किया। देयर इज नो मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन द कोर ऑफ द एलवीडीटी, दिस इज द कोर एंड दिस इज द कॉइल। तो जब दोनों में कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं, देन द चांसेस ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों में कांटेक्ट की वजह से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। सो फ्रिक्शन फ्री ऑपरेशन हमेशा क्या रहेगा? इजी रहेगा। फ्रिक्शन ही नहीं है तो जो मोशन को अपोज कर रहा है, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट एडवांटेज, फ्रिक्शन लेस। minimum 3 advantages, 3 disadvantages और 2 application should be covered for each type। ठीक है, ये आपको हमेशा लिखनी है। हो सकता है आज हम 4 टॉपिक पढ़ें, बाकी के 2 आपको खुद पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो आप हमेशा ऐड करोगे, एडवांटेज देन डिसएडवांटेज देन एप्लीकेशन। ठीक है, मे बी somebody is asking and if no one is asking then you are skipping that point, लेकिन हमें याद पहले ही करनी है कि फ्रिक्शनलेस क्यों है। और कोई एडवांटेज बता सकते हो आप इसकी? ठीक है, इट हैज अ हाई एक्यूरेसी। ठीक है, मिनिमम 3 तो आपको याद ही करनी है, इंक्रीज आप कितनी भी कर सकते हो, दैट द एक्यूरेसी इज हाई। देन इट हैज अ गुड मैकेनिकल लाइफ। ठीक है, सो इट इज वेरी रोबस्ट इन नेचर, गुड मैकेनिकल लाइफ इसकी है। तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हो? एयरक्राफ्ट में, सैटेलाइट्स में, स्पेस व्हीकल्स में। इट इज एनवायरमेंटली रोबस्ट, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग इन दी कंस्ट्रक्शन में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो एक बार इंस्टॉल किया उसके बाद आप इसे बार बार यूज करोगे, दैट इज गुड मैकेनिकल लाइफ। देन व्हाट अनदर एडवांटेज इज देयर? एब्सोल्यूट आउटपुट, ये O/P जो हम बार बार लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट हमेशा एब्सोल्यूट दे रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एब्सोल्यूट आउटपुट? एक बार इसे समझ लो, एब्सोल्यूट आउटपुट का मीनिंग क्या होता है? एक डिवाइस में और ये रिपीट होगा। वो एब्सोल्यूट मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ पावर। ठीक है, जैसे अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ और मेरे पास वाईफाई भी है। ठीक है, पावर भी ऑन है, लैपटॉप में पावर जा रही है, लैपटॉप ऑन है। ठीक है, तो पावर लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, पहले जो आप पीसीज यूज करते थे, ठीक है, आप हमेशा कहते थे कि जो सर इसमें लाइट चली गई है, लैब में आप काम कर रहे हो, लाइट चली गई, सिस्टम शट डाउन हो गया। ठीक है, और रन ही नहीं कर रहा। अब आप कहते थे कि सर पता नहीं पहले वाली फाइल सेव हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो वो आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहती थी कि सर हम तो काम कर रहे थे, एकदम से लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गई, अब पता नहीं आउटपुट सेव किया है इसने, इनपुट की नहीं किया है। ठीक है, तो वो 2 तरह के डिवाइस होते हैं। तो वो एब्सोल्यूट डिवाइस क्या करता है, या जब आउटपुट एब्सोल्यूट है उसका मतलब क्या होता है? दैट इट इज सेविंग द इंफॉर्मेशन एंड द लॉस ऑफ पावर मीन्स नो लॉस इन दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप इसे प्रिसाइज वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करोगे? वेन एवर देयर इज अ पावर लॉस देन, ठीक है, आप पूरा लिखोगे उधर, देन दी पोजिशन इंफॉर्मेशन या द लीनियर, इसमें तो पोजिशन लीनियर ही है। ठीक है, तो द पोजिशन विल बी सेव्ड, पोजिशन जो वैल्यू थी, कितनी पोजिशन है, दैट विल बी सेव्ड, वो पोजिशन की वैल्यू सेव रहेगी एंड it will not be lost, तो this information can be sent from LVDT to the device connected। ये एब्सोल्यूट का मीनिंग है। एक बार और रिपीट होगा। ठीक है, इसे जल्दी से क्लियर करते हैं आगे। तो ये 2 एडवांटेज आपको याद रखनी है, फ्रिक्शनलेस और एब्सोल्यूट आउटपुट एक्यूरेसी। बाकी आपकी मर्जी है, आप कितनी में ऐड करो। डिसएडवांटेजेस में आप क्या ऐड करोगे? दैट इट इज हैविंग लेस पावर। ठीक है, इट इज कंज्यूमिंग लेस पावर एंड, ठीक है, कुछ भी आप इसमें एप्लीकेशन डिसएडवांटेजेस ऐड करोगे। देन अनदर डिवाइस आपने जो लिखा है वो स्टडी करते हैं हम। ठीक है,
अब ये जिसका क्वेश्चन था उसे ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एलवीडीटी। नेक्स्ट डिवाइस जो हमें स्टडी करना है दैट इज अ पोटेंशियोमीटर। ईच क्वेश्चन इज अ वेरी लेंदी क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, अगर आप एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो मैं वो कंप्लीट 6 मार्क्स आपको बता रही हूँ, उसमें से 1 मार्क्स का कैसे पूछूंगी ऑब्जेक्टिव में वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग पोटेंशियोमीटर। नाउ राइट इन द चैट बॉक्स कैन वी टेक पोटेंशियोमीटर और एनी अदर डिवाइस टू रिवाइज। कोई और डिवाइस रिवाइज करना है या पोटेंशियोमीटर करना है? राइट फास्ट, बिकॉज दिस लेक्चर इज टेकन टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज रिविजन इज डन। ठीक है, जैसे एलवीडीटी आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया तो क्या बताओगे एलवीडीटी के बारे में? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्लान किए थे वो एलवीडीटी, पोटेंशियोमीटर और एनकोडर है, क्योंकि ये तीनों चीजें नई हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, टेकोमीटर, ऑप्टोमीटर, ऑप्टो इंटरप्टर ये सब उस समझ पाए हैं उस लेक्चर में भी और खुद भी कर पाते हैं। ओके, नोबडी इज राइटिंग इन द चैट। पोटेंशियोमीटर वाज क्लियर। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको पोटेंशियोमीटर, देन व्हाट एल्स टू बी डिस्कस्ड। पोटेंशियोमीटर के बाद एनकोडर है। 3 टफ टॉपिक्स हैं इसमें, एक एलवीडीटी, एक पोटेंशियोमीटर। एनकोडर में भी लीनियर एनकोडर अलग है और रोटरी एनकोडर अलग है। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन वाज मिसिंग। ठीक है, जैसे आपको ये जो नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किए हैं इट इज हैविंग बेटर 2 डायमेंशनल डायग्राम, तो इसमें बेटर है। ठीक है, और ये अच्छे यहाँ बना सकते हो, इजी टू ड्रॉ, बट द डिस्क्रिप्शन वाज मिसिंग। ठीक है, सो आई हैव केप्ट 1 ब्लैंक पेज ओवर हियर। वो डिस्क्रिप्शन आपको एक बार यहाँ पे समझा देते हैं, बिकॉज नोबडी इज राइटिंग व्हाट इज टू बी स्टडीड नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरे को मेरे अकॉर्डिंग ही स्टडी कराना पड़ेगा। इसके बाद एनकोडर 15-15 10-10 मिनट्स का एक टॉपिक है। ठीक है, अभी 4:17 हो रहा है। ठीक है, तो ये 4:30 से पहले हम पोटेंशियोमीटर फिनिश करते हैं दोनों टाइप्स, देन अनदर 10 मिनट्स ऑन अनदर टॉपिक। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, डिस्कस इट फास्ट। सबसे पहले क्या बताओगे, मैंने बोला आप किसी भी डिवाइस का टाइप बताओगे, कौन से टाइप का डिवाइस है। ठीक है, क्या ये सेंसर है, पोटेंशियो एक्चुएटर है या ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, और उसमें भी कौन से टाइप का है, तो इन्होंने लिख दिया दैट इट इज अ रेजिस्टिव सेंसर एंड इट इज बिकॉज इट इज मेजरिंग द चेंज इन रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, ये रीजन है। क्या रीजन, कैसे आया, फंक्शन एक बार समझ लोगे तो रीजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज मेजरिंग द पोजीशन। पहली बात ये पोजीशन सेंसर भी है बिकॉज इट इज मेजरिंग पोजीशन चेंज ड्यू टू दी चेंज इन रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो पोजीशन में क्या चेंज आता है। ठीक है, या आप इसका अपोजिट स्टडी करो, पोजीशन चेंज हो रही है सीएनसी मशीन में। ठीक है, वो कितनी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप पोटेंशियोमीटर इंसर्ट कर सकते हो। सो इट इज अ सेंसर, इट इज अ रेजिस्टिव सेंसर आप कह सकते हो, इट इज अ पोजीशन सेंसर, देन इट इज अ एक्टिव है या पैसिव है ये आप डिस्क्राइब करोगे। सो दीज आर ऑल दी टफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप कोई सा भी एक रेज हो सकता है जो इजी है, जैसे अभी सम यही इजी है दैट इट इज अ रेजिस्टिव सेंसर, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो यू विल आंसर इट कि हाँ इट इज ट्रू बिकॉज इट इज मेजरिंग दी पोजीशन ड्यू टू दी चेंज इन दी रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया अभी। देन व्हाई इट इज बीइंग स्टडीड इन दी सीएनसी मशीन सब्जेक्ट में आप क्यों पढ़ रहे हो, वही 5 पॉइंट मैं किसी के लिए भी डिस्क्राइब कर रही हूँ। पहला पॉइंट टाइप आपने बता दी। ठीक है, वो कितने भी टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, नथिंग इज सफिशिएंट फुल्ली। ठीक है, तो आपने एक टाइप तो अभी बता ही दी। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे एक्टिव है या पैसिव है, वो बहुत डिटेल्स हैं। अभी सिंपली फोकस करो व्हाट इज दी फंक्शन। ठीक है, फंक्शन सीएनसी मशीन में फंक्शन तो इसका एक क्लियर है आपको दैट इट इज मेजरिंग दी लीनियर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज दी रोटरी मोशन। तो फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया। सिंपली रिवाइज दीज 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट and for theory also that this is measuring linear displacement and rotary motion also। LVDT में क्या था, सिर्फ linear displacement को ही आप मेजर कर पा रहे थे, रोटरी को नहीं कर पा रहे थे। आपने पोटेंशियोमीटर को भी, पोटेंशियोमीटर से आप दोनों मेजर कर पाते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी और रोटरी मोशन भी। अगेन अ क्वेश्चन। ठीक है, जिसने नहीं स्टडी किया वो नहीं आंसर कर पाएगा कि पोटेंशियोमीटर दोनों करता है और एलवीडीटी सिर्फ लीनियर करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एलवीडीटी रोटरी मोशन भी कर देता है मेजर। ठीक है, देन इट विल बी टफ फॉर यू बट इट इज क्लियरली रिटन। देन इन अ पोटेंशियोमीटर व्हाट इज दी
वर्किंग, ठीक है, वर्किंग यहाँ पे मिसिंग है, वर्किंग में अभी बता दूंगी, वो थोड़ी डिटेल है, ठीक है, मे बी यू विल गेट इट लेटर। वर्किंग, वर्किंग से पहले एक और फंक्शन के बाद एक आप बताओगे हमेशा प्रिंसिपल। कोई प्रिंसिपल और फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है, प्रिंसिपल में आप कोई लॉ डिफाइन करोगे कि क्या प्रिंसिपल है इसका, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो पहले से, वो प्रिंसिपल आपको बताना है। फंक्शन में तो आप बता रहे थे क्या एम है, इस डिवाइस का क्या एम है, क्यों लगाते हैं इसको, तो आपने बताया इससे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं और रोटरी मोशन को मेजर करते हैं। प्रिंसिपल में आप बताओगे फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जैसे एलवीडीटी में एक हो रहा था, मैं अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर कर पाओगे। एलवीडीटी में क्या था, मैं पूछ सकती हूँ फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन था, ठीक है, तो वो फॉलो हो रहा है, तो आप बोलोगे नो, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने देखा है कोर मूव करता है तो जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है वो चेंज करती है। प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है, इसे आप क्लियरली सुनो, रिवाइज करो, ठीक है, कोर मूव कर रहा है, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, वो जो चेंज कर रहा है, देन अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस डिवाइस में क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हमने नहीं बनाए, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, जहां पर भी चेंज होगा वो ये प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, ठीक है, ये आप बताओगे, वर्किंग बताओगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, फर्दर 3 पॉइंट्स आर देयर। सो प्रिंसिपल से पहले एक और चीज आपको क्लियर करनी है, फंक्शन इन सीएनसी, ठीक है, फंक्शन एक आपने बताया, ठीक है, या इसे एक अलग से टॉपिक बना लेना, वाई इन सीएनसी, ठीक है, बिकॉज वी आर कंसर्न मोर अबाउट सीएनसी सब्जेक्ट, वाई इन सीएनसी। सो फंक्शन आपने अच्छा बताया कि रोटरी और लीनियर मोशन मेजर कर रहा है, ठीक है, लेकिन कौन से पार्ट का मेजर कर रहा है, सीएनसी में क्यों आ गया ये डिवाइस का नाम, ठीक है, बिकॉज दैट इज मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, और सम रोटरी मोशन भी मेजर कर सकता है, तो ये सीएनसी में पर्टिकुलर आप वाइवा के लिए आंसर कर सकते हो। प्रिंसिपल क्या है और क्या बता सकते हो सीएनसी में, जैसे सपोज आपको कोई भी, यहाँ पर एक पेन से एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो पेन से आपको देखो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, दिस इज द रेजिस्टेंस is shown in zigzag manner, coil was shown in this rotation in CNC machine when you have to move the spindle or workpiece, ठीक है, अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताई है सीएनसी मशीन में, ठीक है, सीएनसी लेथ या सीएनसी मिलिंग मशीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड वी हैव टू मूव दी स्पिंडल, ये स्पिंडल अटैच होता है, स्पिंडल, ठीक है, यहाँ वर्कपीस रखा होता है, ठीक है, देन वी हैव टू मूव दी स्पिंडल और द वर्कपीस, ठीक है, अभी इन एनी डायरेक्शन, पर्टिकुलर केस बात नहीं कर रहे कौन से, उसकी वैल्यू की बात हम कर रहे हैं कि उसने मूवमेंट करी है, ठीक है, स्पिंडल ने या वर्कपीस ने सपोज 5 mm मूवमेंट करी है, ठीक है, 5 mm, या आप कंप्लीट लिखोगे 5 mm, सो now this potentiometer will tell whether the displacement achieved is 5 mm or is it 10 mm, 5 mm हुई भी है या नहीं हुई है, ठीक है, so if it is 5 mm then is it measuring 5 mm की वैल्यू आपको ये दे रहा है कि नहीं, और अगर ये 10 mm करी है, ये एक एग्जांपल आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, 5 mm और 10 mm, ठीक है, ये पेन से क्लियर राइटिंग नहीं आ रही, इससे राइटिंग क्लियर आएगी, 5 mm है तो क्या एक्चुअल में आपको 5 mm ही शो हो रही है, या अगर आपने 10 mm मूवमेंट करी है तो क्या इसमें डिवाइस में रीडिंग 10 mm ही शो हो रही है, सो ये इसका फंक्शन है, ठीक है, सो अल्टीमेटली ये मेजर क्या कर रहा है, ठीक है, मेजर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो लीनियर पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, और अगर एंगुलर पोजीशन मेजर कर रहा है देन इट इज अ एंगुलर पोटेंशियोमीटर। एंड हाउ विल यू डिफाइन कैसे करोगे, पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन, ठीक है, इट इज कन्वर्टिंग द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ये एक डेफिनेशन आपकी मिसिंग है, ठीक है, तो याद मैं लिख दूंगी आपको क्या क्या याद करना है, नहीं भी आप लिख रहे तो आपको ये ऑलरेडी याद है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज कन्वर्टिंग, ये दोनों चीजें आप बताओगे कि ये क्या फाइनल इनपुट क्या ले रहा है, फाइनल आउटपुट क्या दे रहा है, सो इट इज कन्वर्टिंग, यू विल राइट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, देन द वर्किंग पार्ट में प्रिंसिपल आपको बताना है, अगेन सर्टेन स्टूडेंट्स आर
नॉट ज्वाइनिंग, ओके दे माइट बी स्टडीइंग, बट आप फिर ये लेक्चर मिस करोगे जैसे आपने उस दिन किया था। ठीक है, लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या होता है और रोटरी पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आपको टाइप, डेफिनेशन, कन्वर्टिंग, इन्हीं 3 पॉइंट से अभी के अभी 10 क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। एंड एवरीथिंग इज इजी इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। कंसेप्ट मैंने एक ही बताया, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट, किसी एक फॉर्म में उसे आपको याद करना है। ठीक है, अब क्या इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, एक तो इन्होंने ये लिख दिया, ऐसा नहीं है इस बुक में नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रिंसिपल डिस्क्राइब करा है इन्होंने। 2 टाइप का होता है, लीनियर पोटेंशियोमीटर, रोटरी पोटेंशियोमीटर। सो व्हाट इज लीनियर पोटेंशियोमीटर? You will simply define it that linear potentiometer is used for, ठीक है, आप पूरा लिखोगे, linear potentiometer is used for measuring linear displacement, linear displacement। ठीक है, फिर रोटरी का इसका रिवर्स कर दोगे, that rotary potentiometer is used for measuring the rotary और the angular displacement। ठीक है, एंगल में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है, that is angular displacement। Now what is the principle? Principle is the law, any law you have studied in physics, कोई प्रिंसिपल आपने स्टडी किया है इससे रिलेटेड, रेजिस्टेंस चेंज होने का, वोल्टेज से रिलेटेड कोई भी प्रिंसिपल स्टडी किया है, राइट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई एम मेकिंग दिस ऑन दिस वाइट शीट। ठीक है, जल्दी से इसे एक बार समझाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उस दिन डिस्कस किया था थोड़ा। ठीक है, आपने भी मिस किया, उस दिन भी किया, आज भी किया, तो फिर पढ़ोगे कब इस तरह से। सिंपली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, you write any law related to this you have studied। resistance is equal to rho, okay, ये rho symbol हमें insert ही करना पड़ेगा। better to take this pen, then write R is equal to rho L by A। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये किसी ने पढ़ा है प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस, ओम्स लॉ भी कोई लिख रहा है। ठीक है, आप नियर अबाउट हो उस आंसर के। रेजिस्टेंस की वैल्यू का जो फॉर्मूला आपने याद किया है फिजिक्स में, वो सेम प्रिंसिपल है। सिंपली एक बार ये लिख देना एग्जाम में और इसको एक्सप्लेन करना दैट, अब ये सब फैमिलियर है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। व्हाट इज R? ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं व्हाट इज दिस R? दिस R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम ले सकते हैं ये बॉक्स लिखने वाला, दैट R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, आप पूरा लिखोगे, टाइम शॉर्ट है तो मैं इनकम्प्लीट लिख रही हूँ। R इज द रेजिस्टेंस, देन रो इज द रेजिस्टिविटी, ये सब आप पढ़ चुके हो, ऑफ द वायर, कंडक्टिंग वायर की एक अपनी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, स्पेलिंग कुछ एरर्स हो सकती है, रेजिस्टिविटी। देन वी हैव लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो होती है। ठीक है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है। देन वी हैव ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर क्या है। तो इस समय कंडक्टर कहाँ आ गया यहाँ पे, ये बताओ मुझे। ये फिजिक्स की बात यहाँ कंडक्टर की कहाँ से आ गई? मैं कंडक्टर तो नहीं पढ़ा रही थी आपको। ठीक है, पढ़ा पोटेंशियोमीटर रहे थे, कंडक्टर कैसे आ गया इसमें? बिकॉज दिस वायर, ये जो वायर आपने अटैच की है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, दैट इज बीइंग कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, 2 होते हैं, कंडक्टर होता है एक होता है इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देता है पास के लिए वो कंडक्टर है, जो नहीं करता वो इंसुलेटर है। ये सब पढ़ चुके हो आप। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस लॉ को, प्रिंसिपल को रिवाइज करा है। लॉ भी नहीं कहेंगे तो प्रिंसिपल तो कहोगे आप, जब 2 चीजों को आप रिलेट करते हुए उनमें रिलेशन बता रहे हो, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन दैट इज अ प्रिंसिपल। सो इस प्रिंसिपल से आप क्या देख रहे हो, दैट दिस कैपिटल R रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रिसाइज पॉइंट लिखने हैं आपको अपने आंसर में। एक पहला ये लिखना है, दूसरा लिखना है दिस कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। सो दिस कैपिटल L इज व्हाट, ये थोड़ा इंक्रीज हो गया, दिस कैपिटल L इज द लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। सो इसका क्या मीनिंग है, जब लेंथ में कोई चेंज आएगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी की वैल्यू भी चेंज करेगी। अब लेंथ कैसे चेंज कर रही है आप बोलोगे, ये तो फिक्स्ड है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये फिक्स्ड नहीं है, इसमें आप एक पार्ट देखो, ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट,
दिस इज दी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट भी इसे कहते हैं या स्लाइडर कहते हैं. सो दिस स्लाइडर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज स्लाइडिंग. नाम से क्लियर हो रहा है, स्लाइडिंग. ठीक है, तो ये पॉइंटर की हेल्प से आप देखो ये स्लाइड करेगा इधर उधर, टू एंड फ्रो. तो ये टू एंड फ्रो जैसे ही स्लाइड करेगा तो लेंथ जो चेंज हो रही है, इसको हमने स्लाइडर को जैसे सी पॉइंट दे रखा है इस समय. सी थोड़ा ऊपर है इस डायग्राम में. यही बुक सबके पास है इस समय पीडीएफ फाइल में, लेकिन इसकी वर्किंग नहीं है. तो वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है. ए के बाद सी कहाँ चला गया, ये बी कैसे आ गया. तो ये सी पॉइंट जो है ये स्लाइडर वाला पॉइंट है यहाँ पे, जिस पॉइंट से ये टच कर रहा है इसको. स्लाइडर किसी चीज से टच, किसी पॉइंट से टच करेगा ना. जैसे अगर यहाँ पे है स्लाइडर तो वो इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है. मीनवाइल इस बुक में थोड़ी सी पब्लिशिंग एरर है, या थोड़ा ये ऊपर बन गया पॉइंट, तो सी समझ ही नहीं आता सी क्या है. ठीक है, तो सी आपका जो स्लाइडर वाला टच कर रहा है पॉइंट, दैट इज सी, ए सी. ठीक है, तो जब ये ए सी चेंज कर रही है, लेंथ चेंज कर रही है. ठीक है, और तो क्या चेंज करेगा, अभी आपने बोला है लेंथ विल चेंज, देन द रेजिस्टेंस वैल्यू विल डायरेक्टली चेंज. So you will simply write in your notes, when slider moves, the length of the resistance element is changing, R changes. ठीक है, तो जब स्लाइडर चेंज कर रहा है, L चेंज कर रहा है, और L चेंज कर रहा है तो R चेंज कर रहा है. फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इस पॉइंटर की हेल्प से आप देखो, ये स्लाइडर है. ठीक है, ये स्लाइडर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या चेंज कर रहा है, कैपिटल L. कैपिटल L चेंज कर रहा है तो क्या चेंज करेगा, कैपिटल आर. कैसे चेंज करेगा, वो इस प्रिंसिपल की हेल्प से चेंज करेगा. ठीक है, तो एक बार आपने एल को चेंज करा दिया तो कैपिटल आर भी चेंज कर रहा है. नाउ व्हाट इज द फुल प्रिंसिपल. फुल प्रिंसिपल क्या कहता है ये, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर. ठीक है, तो इसमें आप पूरा लिखोगे, या आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं है तो एक बार लिख दो बस, उसको बार बार रिवाइज करना है उसे. चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ठीक है, विद चेंज इन लेंथ, विद चेंज इन लेंथ. ठीक है, तो ये लेंथ चेंज इन लेंथ से वो चेंज कर रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर वी गेटिंग, इट इज कन्वर्टिंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू वोल्टेज. कैसे ये डिस्प्लेसमेंट इनटू वोल्टेज कर रहा है, इसकी वर्किंग क्लियर करते हैं तब ये समझ में आ जाएगा हमें. अगेन कम बैक टू दिस लीनियर. लीनियर को समझ लो, रोटरी अपने आप समझ में आ जाएगा. इसमें वी ओ वी है और इसमें ए बी सी पॉइंट्स बने हुए हैं. फंक्शन सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीजें लिखनी है. फंक्शन आपको क्लियर हुआ है, दैट व्हाट इज द एम. फंक्शन क्या है, वी हैव टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिंपली आप फंक्शन को कैसे बताओगे, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है. ठीक है, आप उसे मेजर कर पा रहे हो इस डिवाइस की हेल्प से. तो सिंपली राइट, इट इज मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, दैट इज द फंक्शन. अब वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो लीनियर मूव कर रहा है या रोटेट करते हुए मूव कर रहा है. ठीक है, तो वो दो तरह का हो गया, लीनियर और रोटरी. एंड एज द बॉडी मूव्स, इस स्लाइडर की मूवमेंट जिससे हम एक्चुअली में सीएनसी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्लाइडर को हम कनेक्ट करेंगे जिस पार्ट में मोशन है. ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने इस डायग्राम को अधूरा बना रखा है एक तरीके से, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है. ये जो हैच करके मैंने बनाया अभी इस समय, ये ऑब्जेक्ट आपको अटैच करना है स्लाइडर से, तभी वर्किंग शुरू होगी. ठीक है, अगर आपको वर्क टेबल की मोशन को मेजर करना है तो ये वर्क टेबल से अटैच करा है आपने स्लाइडर, या किसी और ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे अटैच करो. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ. ये ऑब्जेक्ट ओ कनेक्ट होगा स्लाइडर से. अब जैसे ही वर्किंग क्या है, हम सीएनसी मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, या ठीक है वो ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट हो गया एक बार. ठीक है, तो वो मूव करने लग गया है, तो क्या होगा, दिस वर्किंग विल स्टार्ट. सो एज द बॉडी और द ऑब्जेक्ट मूव्स, दिस स्लाइडर मोशन, ये जो स्लाइडर है ये वाला, ठीक है, सो दिस स्लाइडर विल ऑल्सो मूव. अब इसको मोशन मिल गया एक एक्सटर्नल सोर्स से. अब जब ये स्लाइडर मूव करेगा, अभी मैंने आपको बताया, तो ये लेंथ ऑफ द कॉन्टेक्ट चेंज करेगी, लेंथ ऑफ द कॉन्टेक्ट चेंज करेगी. सो कैपिटल आर, रेजिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द स्लाइडर. ठीक है, ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये स्लाइडर है, एक पॉइंट ए है ये, ठीक है, एक पॉइंट ये सी है. तो ये जो रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है, ये चेंज कर रही है, फिक्स पॉइंट एंड स्लाइडर चेंजेस. एंड ड्यू टू दिस चेंज इन रेजिस्टेंस, आगे आपको जो प्रिंसिपल बताया फिजिक्स का वो क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज करती है तो वोल्टेज भी चेंज करती है. ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी कैपिटल आर. ठीक है, सो ये वोल्टेज की वैल्यू
भी चेंज होगी एंड द चेंज इन दी वोल्टेज अक्रॉस दी पॉइंट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो पहले आपने क्या लिखा, एल चेंजेस। शॉर्ट में आप सिंपली तीन बातें लिखोगे, कैपिटल एल चेंजेस, सो कैपिटल आर रेजिस्टेंस चेंजेस, सो द कैपिटल वी दैट इज द वोल्टेज चेंजेस। नाउ दिस चेंज इन द वोल्टेज, इस वोल्टेज की हेल्प से आप क्या मेजर कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी को मेजर कर सकते हो। और अल्टीमेटली हमें डिस्प्लेसमेंट ही स्टडी करना है या मेजर करना था, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड। ओके, व्हाट एल्स इज देयर इन दिस वर्किंग, वन फॉर्मूला इज मिसिंग। ठीक है, जो आपने इस बुक में लिखा हुआ है, मे बी इट हैज रिटन, ओके इट हैज नॉट रिटन द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी आपको क्लियर है, अभी हमने बताया, दे आर नोन एज रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये आप खुद यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला इन्होंने लिख के नहीं दिया है, नहीं लिख के दे रहे, देन यू विल सिंपली राइट इट हेयर। ठीक है, आप ब्लैंक पार्ट नहीं रखोगे यहाँ पे, दैट एज द रेजिस्टेंस, फर्स्टली इरेजिंग दिस, हर डिवाइस एक 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, कवर होंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो अभी तो आप इसे उस लेवल के नहीं लिख रहे आंसर, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, जब एक डिवाइस इतना लिखने के लिए आएगा इतने मार्क्स का, तब आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे, सिंस द पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस चेंज, दे आर नोन एज रेजिस्टिव सेंसर, इनका नाम हो सकता है। ठीक है, देन एज कैपिटल आर चेंजेस, ठीक है, सो द लेंथ इज चेंजिंग एंड द आउटपुट वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, टाइम यहाँ लिखने में ज्यादा लगता है मेरे को। ठीक है, मैं लिखना अभी अवॉइड कर रही हूँ, अभी आप सिर्फ सुन लोगे, दैट एज द रेजिस्टेंस चेंजिंग द आउटपुट वोल्टेज वी ओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं लिख रही हूँ, आउटपुट वोल्टेज वी ओ बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में जो वोल्टेज थी, ठीक है, वो चेंज करेगी। एंड एज द पॉइंट सी इज द स्लाइडर, पॉइंट सी क्या था वहां पे आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, सो पॉइंट सी इज द स्लाइडर पॉइंट, सो एज द पॉइंट सी इज द स्लाइडर एंड स्लाइडर की पोजीशन चेंज कर रही है, whose position is changed continuously as the slider is moving. So as the position is changed by the operator or by the motion of the object, then this VO by VS, ठीक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, that is equal to AC upon CB। ठीक है, तो मे बी आपकी बुक्स में अवेलेबल है फॉर्मूला या नहीं है, VO by VB, VS is AC by CB, लेकिन आप उसे रिलेट करके यहाँ से समझा सकते हो। तो ये जो बहुत छोटा टॉपिक लग रहा था यहाँ पोटेंशियोमीटर, लेकिन ये सबसे बड़ा ही टॉपिक है, लीनियर अलग है, रोटरी अलग है। ठीक है, रोटरी और वर्किंग आपको यहाँ पे सेम है, प्रिंसिपल दोनों में सेम है, चाहे रोटरी है चाहे लीनियर है। इसमें भी रोटरी में भी क्या हो रहा है, रोटरी डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर कर रहे हो, और इस समय क्या हो रहा है रोटरी में, और एक ही डिफरेंस आप क्या लिखोगे, बाकी सारी वर्किंग थ्योरी सेम है, कोई सा भी आप पूछ लो, सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे ये स्लाइडर है, ये जो पॉइंटर बना रखा है आपने इस समय, अगेन इस बुक ने लेबलिंग नहीं करी ये पॉइंटर क्या है। ठीक है, तो आप इस पॉइंटर की लेबलिंग करोगे, दैट दिस पॉइंटर इज द स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर। अब रिवीजन क्लास का मीनिंग ये है कि आपको सिंपली फंक्शन बताना है रोटरी पोटेंशियोमीटर का। तो आप रोटरी पोटेंशियोमीटर का फंक्शन क्या बताओगे, राइट इन दी चैट बॉक्स, या उसका टाइप क्या बताओगे, वर्किंग क्या, सारी चीज सेम है। ठीक है, वर्किंग सारी सेम है, ओनली डिफरेंस इज दैट दिस स्लाइडर इज रोटेटिंग हेयर, ये स्लाइडर एरो जो है ये रोटेट कर रहा है इस समय, रादर वो लीनियरली मूव कर रहा था वहां पे। देन व्हाट इज द टाइप हेयर, ठीक है, कौन से टाइप का है ये सब बता सकते हो आप। रोटेशन मीन्स दिस स्लाइडर इज रोटेटिंग एंड द रिमेनिंग वर्किंग इज सेम। ठीक है, तो ये स्लाइडर और ये जो पार्ट है इसमें रेजिस्टेंस वाइंडिंग है, और स्लाइडर से हमेशा क्या कनेक्ट करोगे, वो पार्ट जिस, ये एक ऑब्जेक्ट है, सिंपली इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। ठीक है, इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको आप इस पार्ट को कनेक्ट करोगे स्लाइडर से। ठीक है, और ये स्लाइडर जब ये पार्ट मूव करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये स्लाइडर भी मूव करेगा। और जैसे आपने ये बाइक में देखा होगा, क्या बोलते हैं उसे, इंडिकेटर में रीडिंग जैसे आप इंक्रीज करते हो स्पीड, तो ये पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंगली होती रहती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जब चेंज कर रही है, कैपिटल एल चेंज हो रहा है, सबसे पहले सेम वर्किंग है, रिपीट नहीं हो रही यहाँ पे, सबसे पहले आप वही लिखोगे, कैपिटल एल लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस।
ये वायर यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट है जो कि वायर की फॉर्म में आप दिखाते या ऐसे दिखाते, ठीक है। कैपिटल एल चेंज कर रहा है, कैपिटल एल चेंज करने के बाद, ठीक है, पहले लिखोगे एल चेंजेस, ठीक है, देन कैपिटल आर चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंजेस, देन वोल्टेज वैल्यू जो इंड्यूस हुई है वो चेंज करेगी, और उस वोल्टेज चेंज को मेजर करके आप क्या निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट। अल्टीमेटली एम याद रखोगे, ये नहीं है सारी वर्किंग बताया है, अल्टीमेटली मेजर क्या करा आपने, डिस्प्लेसमेंट करी या वो क्या करा, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपने मेजर करी है। यस अगेन 10 मिनट्स आर ओवर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर पे इनफैक्ट 15 से ज्यादा मिनट्स लग गए हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं, लेकिन हमें ये क्लियर करना जरूरी है। दोनों की वर्किंग सेम है, मैं आपको किसी भी एक फॉर्म में ये लिख के दे दूंगी, ठीक है, आपकी बुक्स में ये वाली है या डिफरेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैंने डायग्राम दिया है ये बेटर 2D डायग्राम्स हैं, इन्हीं को ड्रॉ करो और इसी से रिलेटेड वर्किंग को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो एक पेज में इंसर्ट कर दूंगी आज वर्ड का कि यहाँ पे आपको क्या इंसर्ट करना है लिखने के लिए, ठीक है। नहीं भी हो रहा इंसर्ट तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो अभी फेस कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें इसी तरह का कुछ क्वेश्चन होगा जब रेजिस्टेंस आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वोल्टेज चेंज से आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है, लीनियर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, और वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा आंसर। यस राइट द नेक्स्ट टॉपिक टू बी स्टडीड। फोर्थ, एक तो हमारा लेक्चर लेट ही शुरू होता है, 3:30 वाला टाइम रखा है, तो फिर वो थोड़ा लेट शुरू हुआ, वो लेट ही एंड होता है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम रहती है। लीनियर एनकोडर, अब ये एनकोडर रिवाइज कर सकते हैं हम। Yes, whosoever is present, only 17 students are present right now, ठीक है, उसमें भी अब जो प्रेजेंट है वो ही अपना डाउट लिखे तो ज्यादा अच्छा है। मैं ठीक है, इसमें कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करेगा कि अब आए, ठीक है, बैठ के चलेगा ये क्लास में ऑनलाइन, आपको हमेशा कुछ गेन करके ही जाना है, ठीक है, ये कि आपने क्या गेन करा, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी आप आए हो तो आपने ये रोटरी का समझ लिया, ठीक है, रोटरी का जिसने समझ लिया वही लीनियर का था, ठीक है। तो अभी नहीं लिख रहे आप चैट पे, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो जो आपको डिस्कस करना है, ठीक है, नहीं तो मैं एनकोडर डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वो रिवीजन तो पूरी होगी चैप्टर की, ठीक है, लेकिन आपने पहले लिख दिया, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने लिखा पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर पहले हो गया, एलवीडीटी पहले हो गया, तो अच्छी बात है, आपको आज जो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं वो फिर अब आप इसे रिवाइज करके लिख दोगे। दिस इज एनकोडर। यस, कैन वी स्टार्ट विद एनकोडर। एनकोडर, ये टॉपिक्स हमेशा से, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये एंड सेमेस्टर तक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के नहीं है, ठीक है, एनकोडर हमारा मैकेनिकल फील्ड का नहीं है। ओके, आई विल स्टार्ट विद द एनकोडर, ठीक है, जैसे एलवीडीटी इलेक्ट्रिकल था, मैंने थोड़ा रिवाइज कराया, 15 मिनट्स लेक्चर इसमें कंज्यूम हुआ है, देन अगेन पोटेंशियोमीटर को रिवाइज कराने के लिए, ये बहुत इजी था, ठीक है, इसमें आपने देखा ये बहुत इजी, सब बच्चे इस फॉर्मूले को जानते थे, तो इसे रिवाइज करने में आपको इंटरेस्ट आया और आपने समझ लिया कि चलो अब एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम इज क्लियर टू अस, ठीक है। ये डायग्राम अभी तक मैंने दे रखा था आपको, ये वाला और ये वाला, और उस दिन मैंने वर्किंग समझाने की कोशिश की थी, बहुत फास्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा स्लो करके इसको फॉर्मूले के साथ समझाइए तो आपको और बेटर समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार आप इस फॉर्मूले को खुद रिवाइज करोगे, और 3 लाइनें ही लिखनी है अल्टीमेटली, बहुत ज्यादा नहीं लिखना इतना आंसर, ये जो लिखा है उसके साथ 3 ये वाली ऐड करनी है कि कैपिटल आर चेंजेस, देन एल चेंजेस, देन वी चेंजेस, और वी चेंजेस करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनकोडर जब हम पढ़ाते हैं, देन अगेन दिस इज मेकाट्रॉनिक्स पार्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये है, तो अब वो भी हमारा पार्ट नहीं है मैकेनिकल का, ठीक है, लेकिन उसे भी शॉर्ट वर्ड्स में हमें डिस्क्राइब करना है, सो वी विल सिंपली स्टार्ट विद द एनकोडर पार्ट। 2-3 टाइप्स हैं, लीनियर, ये वाली फोटो यहाँ पे हमने बनाई है, इंक्रीमेंटल, ठीक है, और एक एब्सोल्यूट, वो आपकी बुक्स में ही गिवन है, तो आपको जो नोट्स मिले हुए हैं अभी, आपको कौन से मिले हुए हैं, खुशदीप गोयल बुक से मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये लीनियर यहाँ से आप शुरू करोगे पढ़ना। We are taking it 4:44 is the time, 15 minutes on the encoder, then we will end the lecture with your doubt session, ठीक है, क्योंकि आप आए हो लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो कोई टाइम वेस्ट नहीं यहाँ पे हमें करना है, ठीक है, और मतलब ये इनकम्प्लीट भी नहीं रखना है कि अब आप ये समझ के नहीं गए, ठीक है, देन देयर इज नो यूज। एनकोडर इज
इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू मॉनिटर द मोशन और द पोजिशन। ठीक है, तो इन्होंने दोनों बातें लिख दी एनकोडर में कि ये पोजीशन भी मेजर कर सकता है और मोशन भी मेजर कर सकता है। ठीक है, पोजीशन, मोशन। सो अगेन दी सेम टाइप्स विल बी डिस्कस्ड हियर कि ये कौन से टाइप का होता है, ये क्या है, ये सेंसर है या ये ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है कि व्हाट इज इट। एलवीडीटी के बाद ये टॉपिक लिया गया है, यू राइट इट, इज इट अ सेंसर, ये सेंसर है या नहीं है। नोट्स में आप देख भी सकते हो, आपके पास जो फाइल दिख रही है इस समय स्क्रीन पे, उसी में लिखा हुआ है कि इट इज अ सेंसर और नॉट। एनकोडर, ओके, मे बी यू आर नॉट रीडिंग दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन जो आपको दिख रही है, एनकोडर यूजेस ऑप्टिकल सेंसर टू प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो ये एक सेंसर है। ठीक है, सही लिखा है अभिनव ने आंसर। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे लेट भी आ रहे हैं वो भी सुन रहे हैं लेक्चर को, और पहले से जो बैठे हैं, क्योंकि अब आपको सेंसर की डेफिनेशन एक बार याद करनी है और हर टॉपिक पे लगा देनी है उसको कि ये लीनियर एनकोडर हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये सेंसर है या ये ट्रांसड्यूसर है या ये एक्चुएटर है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर ये दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता तो ये ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, और ये सिंपली कह रहे हैं दिस इज अ ऑप्टिकल सेंसर। ठीक है, बिकॉज इट इज सेंसिंग, सेंस कर रहा है ये चेंज इन दी पोजीशन को, पोजीशन चेंज हो रही है या मोशन चेंज हो रहा है तो उसको मेजर कर सकता है। देन व्हाट इट कैन मेजर, यहाँ से सिर्फ आपको डेफिनेशन लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम मैंने उस दिन भी समझाया था आपको कि यहाँ पे स्प्लिट करके बनाया गया है, कंप्लीट एरोज नहीं दिखाए गए, ये सब एक एरोज एक लाइन में दिखाने थे इन्हें। मे बी बुक में प्रिंटिंग एरर है, क्या है समझ नहीं आता। ठीक है, तो डायग्राम हमेशा सिर्फ पार्ट्स दिखते हैं, एरो नहीं दिखते। तो या तो एक छोटा सा यहाँ बनाया गया था, अब वो कुछ समझ नहीं आता क्या बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने इसको दूसरा डायग्राम बना के आपको रिटर्न नोट्स में बना रखा है, दैट दिस इज द लीनियर एनकोडर एंड दिस इज द रोटरी एनकोडर। ठीक है, ये रोटरी एनकोडर वाला डायग्राम आपको मिला हुआ है नोट्स में, जिसमें रिटर्न वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज अ एनकोडर। ठीक है, लीनियर है या कोई भी है, सबसे पहले सिर्फ एनकोडर की आप बात करोगे। ठीक है, तो एनकोडर में आपने बोला दैट इट इज अ ऑप्टिकल सेंसर भी है, एनकोडर है। ठीक है, एनकोडर वी आर स्टडीइंग। देन क्या ये मेजर करता है, सिंपली डिफाइन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनकोडर, क्यों यूज करें हम एनकोडर को। ठीक है, एलवीडीटी सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता था जो सिर्फ लीनियर होती थी। ठीक है, यहाँ आप डिफरेंट बना सकते हो, एलवीडीटी वाज मेजरिंग, it is very tiring to listen all the lecture, that's why main points are written. ठीक है, LVDT was measuring, LVDT जो मेजर कर रहा था वो सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। फंक्शन एक एक लाइन में बताना है आपको, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सिर्फ एक फंक्शन बनेगा एक डिवाइस का। ठीक है, LVDT was measuring linear displacement. Then what is other device we studied, potentiometer. ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर रहा था, राइट इन द चैट बॉक्स पोटेंशियोमीटर व्हाट इज द फंक्शन, वो क्या मेजर करता है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करता है या क्या करता है, इतना आप लिखो। देन एनकोडर इज मेजरिंग, मैं एनकोडर का लिख रही हूँ, पोटेंशियोमीटर का आप चैट में रिप्लाई लिखो। एनकोडर इज मेजरिंग, एनकोडर इज मेजरिंग द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी ये दे देता है। ठीक है, आरपीएम भी देता है ये, आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज रोटेशन। ठीक है, एंगल भी दे सकता है ये। सो एनकोडर इज अ मल्टीपल डिवाइस। यस, नोबडी इज राइटिंग इन द चैट बॉक्स, राइट इट फास्ट। पोटेंशियोमीटर का क्या फंक्शन है, एलवीडीटी का मैंने ये लिखा है, आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया, एलवीडीटी मेजर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओनली। यहाँ आप ओनली वर्ड भी लगा सकते हो, ONLY, क्योंकि उसमें कोर सिर्फ लीनियर मूव करता है। ठीक है, कोई रोटरी लीनियर एलवीडीटी मैंने आपको नहीं बताया। देन व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर इज मेजरिंग, लिखो आप चैट बॉक्स में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वाज मेजरिंग, जो नहीं था प्रेजेंट, ठीक है, वो सुन लेगा ठीक से। एलवीडीटी वाज मेजरिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओनली, पोटेंशियोमीटर मेजर्स लीनियर एज वेल एज रोटरी।
ठीक है। सो लीनियर भी मेजर कर सकता है वो डिस्प्लेसमेंट को, और जो आपने रोटरी पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, तो रोटरी पोटेंशियोमीटर रोटरी डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। सो रोटरी पोटेंशियोमीटर मेजर्स लीनियर एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट्स बोथ, ठीक है। ये डिफरेंस अब आपको क्लियर हुआ है, बोथ। अब एनकोडर क्या करता है, ठीक है। नाउ वी आर, एनकोडर इज अ हाईली, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस। वो डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकता है, ठीक है, या वो एक आरपीएम को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। कोई भी, जैसे ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है सपोज, ठीक है, ओनली 2D डायग्राम इज ड्रॉन, ये कितने रिवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रही है। ट्राई टू बी अलर्ट राइट नाउ एंड राइट, कैन वी कंटिन्यू एनकोडर, because there is no point I am discussing, no student is listening because you did not write in the chat box। पोटेंशियोमीटर का आंसर तो किसी ने लिखा नहीं। अब ये लिखो कि ये एनकोडर को हम कंटिन्यू करें, क्योंकि ये टफ टॉपिक है आपके लिए खुद के समझने के लिए। अब आपने देखा 3 पढ़ाए थे, तीनों में से आपने एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक। क्यों? क्योंकि सिर्फ फंक्शन पूछा जा रहा था। एक टाइम पर एक ही चीज पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में, या तो फंक्शन, ठीक है, या वर्किंग का पॉइंट, या कोई एप्लीकेशन का पॉइंट। तो जब पूछा था पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर रहा है, तो आपका आंसर नहीं आया, चैट बॉक्स में आना था, इट इज मेजरिंग लीनियर एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट बोथ। जब पूछा जा रहा था लीनियर एलवीडीटी, तो आपको लिखना था इट इज मेजरिंग ओनली लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो फंक्शन को क्लियर करना है और हाईलाइट करना है। हाईलाइटर आपके पास प्रेजेंट है स्टेशनरी में, तो उसे हाईलाइट करके रखो नोट्स में। नोट्स बनाओ पूरा 1 पेज का, उसके बाद हाईलाइट कर दो इसको, प्रिंसिपल को और फंक्शन को। बाकी डिस्क्रिप्शन बात की बात है, उसमें 4-5 लाइनें कम हो सकती हैं, लेकिन इसमें तो कम ही नहीं हो सकती ना, इसमें तो एक ही लाइन है, क्या फंक्शन है, एक ही लाइन है, तो इसमें क्या कम करोगे आप, ये एक ही लाइन है, ठीक है। वर्किंग में कोई स्टूडेंट 10 लिखता है, कोई स्टूडेंट 20 लाइन लिखता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। राइट इन द चैट बॉक्स, कैन वी कंटिन्यू एनकोडर, whosoever is present। एनकोडर इज मेजरिंग, अगेन मैंने फंक्शन लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट, DOR, RPM, एंगल। अब कौन से टाइप का एनकोडर है, वो क्या मेजर करता है। एक एनकोडर सारी चीजें मेजर नहीं कर रहा है, एक टाइप का एनकोडर, ठीक है, एक ही टाइप की चीजें मेजर कर रहा है। तो जैसे लीनियर एनकोडर है, वो लीनियर ही मेजर कर रहा है। यस राइट। कंटिन्यू, राइट टू कंटिन्यू। टेन मिनट्स टॉपिक इज देयर ऑन एनकोडर, ठीक है। 5 मिनट्स तो हमारे लग ही गए हैं डिस्क्रिप्शन पर, दैट दिस इज लीनियर, दिस इज रोटरी, दिस इज मेजरिंग ऑल द थिंग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनकोडर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनकोडर में आप क्या बताओगे, लीनियर एनकोडर एंड रोटरी एनकोडर। लीनियर एनकोडर मेजर्स द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर रोटरी डिस्प्लेसमेंट्स आर मेजर्ड। देन 2 टाइप्स के हैं इसमें, बट बिफोर दैट यू हैव टू राइट। अभिनव इज राइटिंग, कंटिन्यू। नो वन एल्स इज राइटिंग, व्हाई? ओके वी आर कंटिन्यूइंग इट, ठीक है, क्योंकि अब ये टॉपिक स्टार्ट भी हो गया है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। फर्स्ट द फंक्शन, ठीक है, बार बार हम इसमें नहीं लिखते, वो आपको क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन आपने बता दी, उसके बाद आपने फंक्शन बता दिया। फंक्शन आप पूछोगे कौन से एनकोडर का, मैं भी ऐसे आपसे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती रैंडमली, एनकोडर का क्या फंक्शन है। रैंडमली बोला है तो रैंडमली आपने आंसर ये देना है, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, RPM, एंगल। किसी एक नाम से पूछना है तो उसी का फंक्शन बताना है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनकोडर, सो यू विल राइट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनकोडर। लीनियर एनकोडर, ठीक है, लीनियर एनकोडर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड रोटरी एनकोडर, so rotary encoder is used for measuring rotary displacement, ठीक है, angle। then there are another ways, absolute encoder, ठीक है, absolute encoder, and एक और है, वो है incremental encoder। ये 2 टाइप्स आपको याद करनी है, ठीक है। एक लीनियर का एक अलग क्वेश्चन है, रोटरी का एक कंप्लीट अलग डायग्राम, एब्सोल्यूट का अलग है, इंक्रीमेंटल का अलग है। सो लीनियर और रोटरी को डिफाइन कर दिया। देन आवर टास्क इज व्हाट इज अ लीनियर एनकोडर, ठीक है, डिस्क्राइब तो कर दिया लेकिन वर्किंग नहीं बताई हमने। सो दिस इज अ लीनियर एनकोडर इन विच
As you can see, this is a pointer. Okay, so this is a linear encoder. We are zooming this diagram. This is a work table. Okay, whosoever is present will listen. In this linear encoder, as you can see, this is a temporary pointer. Okay, it will get erased. We are further increasing this diagram. Now it is visible to you. So this is a linear encoder because it is measuring the linear displacement only. This is one question of objective. Is it measuring rotary? So you will write no. Then what is the function? This is the work table. ठीक है, ये वर्क टेबल है रेक्टेंगल. दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन. वर्क टेबल मूव करती है जिसपे वर्क पीस रखा होता है सीएनसी मशीन में. देन दिस इज द लीनियर ग्रेटिंग, ऑप्टिकल ग्रेटिंग. एक डिस्क है ये, एक जिसके ऊपर ऑल्टरनेट, ठीक है, जिगजैग तो नहीं, ऑल्टरनेट लाइंस प्लेस्ड हैं. एक डार्क एरिया है, एक लाइट एरिया है, एक डार्क एरिया है और फिर एक लाइट एरिया है. ठीक है, इस तरह से एक डिस्क बनेगी ये, और उसका ये 2D डायग्राम हमने बनाया हुआ है. ठीक है, देन अ फोटो सेल इज देयर विच इज गिविंग द लाइट. दिस इज द लाइट सोर्स. ठीक है, सो दिस इज गिविंग द लाइट and photocell is detecting is any light is present or not. So simply you will describe. ये written part में आपको description बहुत अच्छी मिली हुई है, simply उसी को repeat करोगे. That it is measuring the displacement from the fixed datum. It has a linear scale. This is a linear scale जिसपे lines engraved हैं. एक line transparent है, एक line opaque है. Then one of the unit is fixed and the other is moving on the work table. A pulse is generated by a photocell. Then it is exposed to light source through the transparent areas. ठीक है, if it can pass. ठीक है, जो photocell light pass तभी होगी when the incoming area is transparent. ठीक है, अगर transparent area सामने आया है photocell के, ठीक है, तो light pass हो रही है, then it is detecting. Photocell is detecting that light, otherwise not. So from this detection of the photocell जो भी generate करेगा, ठीक है, कि कितने number of लाइंस हैं एनग्रेव्ड से और कितने नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट हुए हैं. ठीक है, उस दोनों के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क टेबल फाइंड आउट होगी. तो ये आप रिटर्न नोट से बेटर क्लियर कर सकते हो कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है. नाउ व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर. ठीक है, अगेन जूमिंग दिस डायग्राम. ठीक है, इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर, देयर इज अ rotating disk. First part is that there is a rotating disk is there. ठीक है, ये आप देख सकते हो. Again taking a pointer. This is a radial grating disk. Grating disk means this one part is completely black और opaque. ठीक है, अगर हम इसे डायग्राम को कलर करके दिखाते तो और आपको क्लियर होगा कि ये एक पार्ट तो बिल्कुल ओपेक है, ये लाइट को पास नहीं होने देगा, और एक पार्ट पास होने देगा, फिर एक पार्ट लाइट को पास नहीं होने देगा. ठीक है, और एक पार्ट फिर पास होने देगा, ये वाला. सिमिलरली ये कंप्लीटली ग्रेटेड लाइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगेन सेम आप देख सकते हो, एक एलईडी लाइट सोर्स लगा हुआ है और एक फोटोसेल लगा हुआ है. दो साइड में देखो आप, ये एक एलईडी लाइट सोर्स है और एक साइड पे फोटोसेल है और बीच में ये डिस्क प्लेस्ड है. एंड दिस इज द शाफ्ट. ये कौन सी शाफ्ट है? ठीक है, अब आप बताओ ये कौन सी शाफ्ट है? ये शाफ्ट है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लेड स्क्रू हो सकता है वर्क टेबल का, या फिर ये शाफ्ट हो सकती है सर्वो मोटर की, जो हमारा फंक्शन है. अब सपोज 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, किसी भी डिवाइस में आपको स्टडी करना है. ठीक है, उसकी टाइप पहले, ठीक है, उसके बाद आपको डिफाइन करके फंक्शन बताना है. फंक्शन भी आपने बता दिया. ठीक है, अब फंक्शन इन सीएनसी, वाई इन सीएनसी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे रेज किया था ऑब्जेक्टिव में या वाइवा में. तो CNC में क्यों है? बिकॉज यू विल सिंपली राइट हियर इन CNC इट इज यूज्ड बिकॉज इट हैज टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लेड स्क्रू और वर्क टेबल. ठीक है, लेड स्क्रू ऑफ वर्क टेबल से जो कनेक्टेड है, वर्क टेबल में एक लेड, ये जो वर्क टेबल होती है यहाँ पे, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लेड स्क्रू कनेक्टेड होता है. तो ये CNC का लेड स्क्रू वाला पार्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है, और ये वर्क टेबल है. ठीक है, तो जब ये लेड स्क्रू रोटेट करता है तो ये वर्क टेबल मूव करती है टू एंड फ्रो. अब इस लेड स्क्रू में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, वर्क टेबल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, आप कैसे मेजर करोगे? यू कैन पुट दिस एनकोडर देयर.
ठीक है, ये लेड स्क्रू की डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकता है। या फिर आपके पास सर्वो मोटर से जो शाफ्ट कनेक्टेड होती है, ठीक है, उसकी रोटेशन को भी ये मेजर कर सकता है। तो ये दो तरीके हैं, दो एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली, दोनों जगह आप इसे फिट कर सकते हो। जो भी ऑपरेशन है आप उसे उस टाइम पे ये लिखोगे, इसलिए क्लियरली लिखा गया है। लेड स्क्रू ऑफ दी वर्क टेबल पे लगाओगे तो लेड स्क्रू की रोटेशन डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। शाफ्ट पर लगा दोगे सर्वो मोटर की तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको उसकी रोटेशन वैल्यू मिल जाएगी। देन ये एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया कि वाई इन सीएनसी, एंड दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन इन ऑल द टाइप्स। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें या थ्योरी की बात करें तो सबसे टफ क्वेश्चन यही है, सीएनसी में ये क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको हर जगह जस्टिफाई करना है अपना आंसर, जैसे मैंने यहाँ जस्टिफाई किया है कि लेड स्क्रू पर अटैच किया जाएगा, ठीक है। तो ये लेड स्क्रू ही है, ठीक है, और ये लेड स्क्रू पर ये वाला पार्ट अटैच किया जाएगा इसके ऊपर, तब ये मेजर वर्किंग स्टार्ट होगी, ठीक है। या ये सर्वो मोटर की शाफ्ट का मेजर करना है तो वहां पे अटैच किया जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज आंसर वाई इन सीएनसी, ठीक है। यू मे स्किप इट फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन आंसर आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज वी आर रीडिंग दिस ओनली। देन अ फोटो सेल इज देयर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग आप क्लियर करो, वर्किंग उस दिन भी डिस्कस की थी, आज आप रिवीजन में इसे रिवाइज करोगे सिंपली। अगेन टेकिंग अ पॉइंटर हेयर, ठीक है। दिस इज अ डिस्क, दिस इज अ लाइट सोर्स, तो वर्किंग अब स्टार्ट होगी यहाँ से लाइट सोर्स से। व्हेन द लाइट सोर्स इज गिविंग लाइट, ठीक है, देन हो सकता है लाइट सोर्स के फ्रंट में एक डार्क एरिया प्रेजेंट हो जाए। इस समय मैं इसे डार्क बना देती हूँ, ठीक है, ये डार्क एरिया प्रेजेंट हो गया। तो डार्क एरिया जब प्रेजेंट हो जाएगा तो फोटो सेल को आगे लाइट पास नहीं होगी, ठीक है। इसमें हम ये वाला यूज कर लेते हैं एरो, ठीक है। ये जो एरो जा रहा है ये लाइट दे रहा है इसको। अब क्या होगा, ये जब एरो के सामने एक डार्क एरिया आ गया, जो ओपेक एरिया आ गया, वो लाइट को पास ही नहीं करेगा, उसने रोक दिया, तो ये लाइट आगे ही नहीं जाएगी। लेकिन हो सकता है इस डिस्क के सामने, ठीक है, ये वाला पार्ट प्रेजेंट ना हो और एक डार्क लाइट एरिया प्रेजेंट हो, तो उस समय ये लाइट जो है वो पास हो जाएगी उससे, पूरी डिस्क से, और फोटो सेल पर चली जाएगी। नाउ दिस फोटो सेल विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। अभी फोटो सेल का क्या वर्किंग होता है, यू विल सिंपली राइट, ये नोट्स रिटर्न नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार उसे दोबारा लिखोगे अपनी हैंड राइटिंग में। अ लाइट सोर्स इज फिटेड ऑन वन साइड ऑफ द डिस्क एंड अ फोटो सेल ऑन द अदर साइड व्हेन द डिस्क इज रोटेटिंग, ठीक है। जब ये डिस्क रोटेट कर रही है, पूरी डिस्क रोटेट कर रही है, स्टॉप नहीं कर रही मोशन को, देन द रोटेशन विल, द फोटो सेंसर इज सेंसिंग सम लाइट, ठीक है। एक पॉइंट पे सेंस कर रहा है, एक पॉइंट पे डार्क एरिया आ रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अल्टीमेटली दिस फोटो सेल इज रिकॉर्डिंग द आउटपुट। फोटो सेल से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। हमेशा यहाँ फंक्शन लिखना है आपको, चाहे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है चाहे कोई सा भी टेस्ट है, फोटो सेल में आप क्या मेजर कर रहे हो, आउटपुट कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। सो दिस फोटो सेल, या इसका दूसरा नाम होता है फोटो डायोड। सो दिस फोटो सेल इज मेजरिंग और इट इज गिविंग दी आउटपुट, ये हमें आउटपुट देता है, जैसे मैंने यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, फोटो सेल इज गिविंग दी आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट भी किस फॉर्म में देता है, ठीक है, वोल्टेज की फॉर्म में देता है। सो दिस इज गिविंग आउटपुट voltage, VOLTAGE. So this is giving output voltage, and what is happening here, based on the intensity of light falling on it, output from the photocell, ये आउटपुट किस फॉर्म में देता है, सबसे पहले ये एक साइन वेव देता है हमें। किसी भी बुक में कोई सी भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि हमारी बुक में साइन वेव बनी है और जो मैम के नोट्स हैं उसमें स्क्वायर वेव कहाँ से बन गई, ठीक है। तो पहले वो साइन वेव का इनपुट देगा इस तरीके से, और फिर वो एक स्क्वायरिंग सर्किट की हेल्प से, इससे पहले आप एक बना सकते हो कि पहले एक साइन वेव देगा, कौन देगा आउटपुट, फोटो सेल में। अगर लाइट पास कर गई, यहाँ फोटो सेल पे आ गई, तो फोटो सेल ने डिटेक्ट करेगा, फोटो सेल वोल्टेज का आउटपुट देगा। आउटपुट वोल्टेज का हमेशा कैसे मिलता है, साइन वेव मिलती है, लेकिन वो साइन वेव एक डिवाइस की हेल्प से स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्क्वायर वेव अब आपको शो है इस डायग्राम में, गोल्डन कलर में जो दिखा रखी है। दिस स्क्वायर वेव इज अगेन डायरेक्टली आपको आउटपुट नहीं दे रही, दिस इज गिविंग सिंपली दी नंबर ऑफ, अब आपको यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करनी है आउटपुट की, कि द आउटपुट पल्सेस आर काउंटेड, हाउ मेनी पल्सेस आर गिवन, एंड फ्रॉम दिस आउटपुट पल्सेस द डिस्प्लेसमेंट और द रोटरी स्पीड ऑफ द लेड स्क्रू इज कैलकुलेटेड। ये एक फॉर्मूला पार्ट है, ठीक है, ये बीटेक का पार्ट होता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फॉर आवर सिलेबस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फ्रॉम दिस आउटपुट ऑफ द फोटो सेल द रोटरी स्पीड ऑफ द लेड स्क्रू, ठीक है, जो रोटरी स्पीड है लेड स्क्रू की वो हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर लेड स्क्रू पे नहीं अटैच किया है, शाफ्ट पे अटैच किया है, देन शाफ्ट की
रोटेटिंग स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन फंक्शन जो आपने लिखा था, मोशन को मेजर करता है, मतलब रोटेटिंग स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, एक फॉर्मूला है कंप्लीट, वो अभी हम नहीं स्टडी कर रहे। और दूसरा फोटो सेल क्यों लगाया, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि आपने इसमें फोटो सेल नंबर बी क्यों लगाया। ए ने तो आपको डायरेक्शन दे दिया कि कितने नंबर ऑफ पल्सेस हैं, आपने फाइंड कर लिया क्या आउटपुट है। ठीक है, द सेकंड फोटो सेल इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इस शाफ्ट की, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है वो आपको दूसरा फोटो सेल डिटरमाइन करता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, आपको दो आउटपुट, दो फोटो सेल क्यों अटैच किए जाते हैं, अगेन अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारा एक पेज, दो पेज हमने ब्लैंक रखा हुआ है फॉर योर राइटिंग दी थ्योरी पार्ट, कि फोटो सेल ए क्या क्या फंक्शन करता है, फोटो सेल बी क्या फंक्शन करता है। ठीक है, और उनका दोनों का आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो वोल्टेज है, ठीक है, ये जो भी आपको मिल रहा है, एक में सिर्फ वैल्यू मिल रही है रोटेशन की और एक में डायरेक्शन मिल रही है। सो दिस इज दी, यू विल स्किप दिस पार्ट नाउ, एक जगह से आप स्टडी करोगे, ये वाला आप छोड़ दोगे क्योंकि आपने रिटर्न नोट्स में बेस्ट डिस्क्राइब करा है, BS पाबला बुक से वो लिया गया है। ये जो समझा रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आएगा इतनी इजीली। ठीक है, इसलिए आप यहाँ से ऐसे छोड़ दोगे, रिटर्न नोट से बनाओगे। देन द लास्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट एनकोडर क्या होता है। एब्सोल्यूट एनकोडर में और इंक्रीमेंटल एनकोडर में ओनली डिफरेंस इज दैट whenever there is a power loss, ठीक है, जब भी कोई पावर लॉस हो गई, यानी when the light is gone, the power is disconnected, तो क्या नंबर ऑफ रोटेशंस थी वो वैल्यू स्टोर नहीं रहती। ठीक है, काउंट का लॉस हो जाता है, आपने सिंपली लिखा हुआ है मैंने उस नोट्स में, काउंट लॉस हो जाता है व्हेन देयर इज अ पावर लॉस, किसमें, इंक्रीमेंटल एनकोडर में। लेकिन एब्सोल्यूट एनकोडर में पावर लॉस होती है तब भी आउटपुट स्टोर रहता है मशीन के अंदर, और जब पावर आती है तो आपका वो आउटपुट वैल्यू सेम रहती है और उसके आगे प्रोसेसिंग होती है, वर्किंग भी सेम है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अगेन अ फोटो डिटेक्टर इज देयर, अ लाइट सोर्स इज देयर, लाइट सोर्स लाइट पास करेगा, अगर उसके सामने, लाइट्स के सामने डार्क एरिया आ रहा है तो लाइट पास नहीं होगी, अगर एक ओपेक एरिया ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो लाइट पास होगी। फोटो डिटेक्टर आपने सबसे पहले फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, लाइट को सेंस करेगा। ठीक है, लाइट को सेंस करने के बाद वो आउटपुट देगा डिजिटल। ठीक है, वो आपको साइन वेव की फॉर्म में एक डिजिटल आउटपुट देगा और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे स्क्वायर वेव में। सारी फंक्शनिंग सेम है, ओनली द डिफरेंट पार्ट इज रिटन हियर। सो दिस इज ऑल द चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर टर्म इसमें न्यू है, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर। Yes, any more doubt you can write in the chat box. 10 minutes, more than 10 minutes were consumed on this encoder. क्या एनकोडर का फंक्शन है, यही आपको क्लियर होना चाहिए। लीनियर एनकोडर का क्या फंक्शन है। ठीक है, आई आस्क यू, यहाँ पर ये जो ब्लैंक पेज ओपन किया था, लीनियर एनकोडर का क्या फंक्शन है, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स। लीनियर एनकोडर का फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बनाओ लीनियर एनकोडर क्या फंक्शन है। ठीक है, क्या कन्वर्ट करता है। ओके, लोकेश इज राइटिंग नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन आपको लिखना है, लीनियर एनकोडर इज कन्वर्टिंग, और इट इज गिविंग, क्या मेजर कर रहा है, इट इज मेजरिंग दी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही मेजर करेगा। और जब रोटरी एनकोडर की बात हुई है, ठीक है, तो रोटरी एनकोडर क्या मेजर करेगा। दिस इज द फाइनल रिवीजन, जब सारी वर्किंग बता देते हैं तो एक प्रिसाइज क्वेश्चन क्या पूछेगी, रोटरी एनकोडर क्या मेजर करेगा। ठीक है, तो रोटरी एनकोडर में आप लिखोगे वो रोटरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मेजर कर रहा है, रोटरी रोटेशन ऑफ द शाफ्ट कैसे मेजर कर रहा है वो सब आपने ऊपर देखा है इंक्रीमेंटल एनकोडर में। ठीक है, फिर आपको बताना है एब्सोल्यूट एनकोडर क्या मेजर कर रहा है। एब्सोल्यूट वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला था, एक डिवाइस में और आया है और ये रिपीट हुआ है। एब्सोल्यूट एनकोडर इज अ मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ पावर लॉस, ये न्यू टर्म नहीं है। ठीक है, व्हेन देयर इज अ पावर लॉस, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं जो स्टूडेंट लेट आए हैं। एब्सोल्यूट मीन्स इट विल सेव द इंफॉर्मेशन, save the information when there is
ये आप साथ के साथ लिख लो कॉपी में तो ज़्यादा अच्छा है, बुक में तो ये लिखी हुई है बात, ठीक है। इट विल सेव द इंफॉर्मेशन व्हेन देयर इज पावर लॉस। अब ये एब्सोल्यूट वर्ड जहाँ भी लगा हुआ था पहले एक डिवाइस में और था, ठीक है, आप चेक करोगे कौन सा डिवाइस था वो, और अब ये एब्सोल्यूट वर्ड यहाँ भी लग गया है एनकोडर के आगे, तो इसका मतलब है दिस एनकोडर, कौन सा एनकोडर, एब्सोल्यूट टाइप एनकोडर विल सेव द इंफॉर्मेशन व्हेन देयर इज पावर लॉस, ठीक है। वो कोई न्यू पॉइंट नहीं है आपके लिए कि एब्सोल्यूट एनकोडर का मीनिंग क्या है। और इंक्रीमेंटल एनकोडर क्या होगा, व्हेन देयर इज अ पावर लॉस, तो पहली वाली वैल्यू क्या थी, ठीक है, तो ये सेव नहीं करेगा। यहाँ पे आप इसे दूसरा तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है इस समय, ठीक है, तो इसने इतनी मूवमेंट करी है इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, और पावर ऑफ हो गई इसी पॉइंट पे, तो वो जो वैल्यू इसने स्टोर कर रखी थी अपने मेमोरी में 10, वो 10 वैल्यू, ठीक है, 10 mm, या इसमें ले लेते हैं, बॉक्स ही बनाना पड़ेगा, ठीक नहीं चलता राइटिंग, 10 mm, ठीक है, तो ये 10 mm वैल्यू स्टोर है उसमें, ठीक है। और 10 mm के बाद हो गया पावर लॉस, ठीक है, कोई भी पावर फेलियर हो गया, पावर लॉस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं है, तो अब एनकोडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप बेटर है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, लेकिन कौन सा ऐसा एनकोडर है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, विल स्टोर दिस डाटा, उसमें स्टोर रहेगा, सेव रहेगा, जब लाइट वापस आए तो आप यही वैल्यू 10 से ही काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। वो कौन सा एनकोडर है, लिखो इसे चैट बॉक्स में, विच एनकोडर विल सेव द डाटा, राइट इफ नो डाउट इज देयर, आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है, ठीक है, नहीं समझा है तो आप उसे रिवाइज करोगे, विच एनकोडर विल स्टोर द डाटा, ठीक है, 10 mm वैल्यू किसने स्टोर की, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप। कहाँ से निकाला ये क्वेश्चन, अभी आपको पढ़ाया था ऊपर, ठीक है, कि एब्सोल्यूट एनकोडर में हमेशा स्टोर रहती है वैल्यू, ठीक है, दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट नाम से ही क्लियर हो रहा है खुद में कंप्लीट, एब्सोल्यूट मीन्स जो खुद में कंप्लीट है, तो वो खुद में कंप्लीट क्यों है, बिकॉज इट इज स्टोरिंग द वैल्यू इन इटसेल्फ, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट वर्ड इसीलिए वहां पर फिट है, तो आपका आंसर होगा एब्सोल्यूट एनकोडर हम यूज करेंगे अगर हमें ऐसा आउटपुट चाहिए जो उसमें स्टोर ही रहे, अदरवाइज वो इंक्रीमेंटल एनकोडर है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद स्टडी करोगे, एप्लीकेशन क्या बनती है एनकोडर की, एक तो मैंने बता दिया, सीएनसी में क्या एप्लीकेशन है वो आप क्लियरली लिखोगे, सर्वो मोटर जो अटैच होती है, क्लोज लूप में हमेशा सर्वो मोटर होती है और ओपन में स्टेपर होती है, अगेन अ क्वेश्चन, ठीक है, तो सर्वो मोटर शाफ्ट जो से कनेक्टेड है उसका आपको रोटेशन आरपीएम निकालना है, ठीक है, या और उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालना है, तो ये यूज होगी, ठीक है। आपने अभी देखा है कि एक एंगल से सिर्फ आरपीएम निकलता है, एक फोटोसेल से सिर्फ डीओआर निकलता है, तो 2 फोटोसेल यूज होते हैं, तो ये सिर्फ सीएनसी में यूज नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये रोबो में भी यूज होती है। रोबो में क्यों यूज होती है, बिकॉज इट इज मेजरिंग रोबोटिक आर्म ने कितना मोशन किया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो ये आप यूज कर सकते हो। लिफ्ट में भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इन एनकोडर कैन बी यूज टू चेक एट विच द कैबिन इज एट विच पोजिशन, ठीक है, तो ये 2-3 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आपकी बुक्स में गिवन, ठीक है, वो सब मैं नहीं करा रही इस पॉइंट पर क्योंकि आपकी बुक्स में गिवन है, सीएनसी में होता है, रोबोट्स में होता है, एक प्रिंटर भी अच्छा एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, ठीक है, जेएस नारंग में है, ठीक है। प्रिंटर में क्या होता है कि पेपर रोलर को पेपर साइज कैसे पता चल रहा है, ठीक है, कि वो A4 साइज, लीगल साइज, या किस तरह से उसे मूव करना है पेपर को, ठीक है, हर तरह का अलग साइज का पेपर है, ठीक है, फिर भी वो पेपर मूव करता है, रोलर इजीली इंसर्ट कर लेता है पेपर को, सो हाउ मच रोलर हैज टू मूव, ठीक है, रोलर को कितना मूव करना है अकॉर्डिंग टू पेपर साइज, तो ये सब थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं कि हाउ मच रोलर हैज टू मूव, ये तो सब वाई, ठीक है, लेकिन आपको इतना याद तो होना ही चाहिए था कि सीएनसी में क्यों यूज होता है, दिस सर्वो मोटर का होता है, एक दूसरा लेड स्क्रू का, सो हाउ मच रोलर हैज मूव्ड, ठीक है, सो दिस इज इन प्रिंटर, हाउ मच द रोलर हैज मूव्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेपर, ठीक है, तो ये स्ट्रेंज लगता है कि एनकोडर भी वहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये है फैक्ट, लेकिन हमें तो पढ़ना अगेन सीएनसी ही है। प्रॉब्लम हुई है कि लीनियर एनकोडर का बनाना 2D डायग्राम है, तो मैंने आपको 2D दे दिया, लिखने के लिए आंसर भी दे दिया, ठीक है, फिर शो करने के लिए आपको ये वर्किंग समझाई है आज, स्पेशली ये लेक्चर इसीलिए लिया गया था डिवीजन के लिए, ठीक है, दैट दिस इज अ लीनियर एनकोडर, रोटरी एनकोडर,
ठीक है, इस पे ज़्यादा एनिमेशन मैं अपलोड नहीं कर रही, मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ। दिस इज अ लीनियर रोटरी एनकोडर में भी, ताकि आपको एक डायग्राम का विजन क्लियर हो जाए। हम ये पढ़ क्यों रहे थे, तो आपको एक फिर किसी चीज को आपको रटना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप एक बार विजन देख लेते हो, समझ लेते हो उसे। Rotary encoders are attached to the motor shaft. ये वाला जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, When the motor ठीक है, तो spins, ये it लाइट is the सोर्स encoder's job to 3D convert डायग्राम में दिखाया rotational गया है। motion to electrical signals. और एक बार An तो देखो, absolute अभी rotary zoom कराया हमने encoder डायग्राम, consists of an एक बार LED तो लाइट transmitter, के सामने a क्या है, इस slotted समय क्या है, disc, ये देखो जो ब्लू है, and a photosensor. लाइट के सामने ट्रांसपेरेंट एरिया आया है जिससे लाइट पास Because हो it गई। is an तो फोटो, ये absolute जो रेड कलर encoder, आया है, ये क्या है, फोटो each सेल। column of slots फोटो सेल ने represents क्या a करा, unique angular आउटपुट को position कैप्चर on कर the लिया wheel. है, आउटपुट वो देगा। For फोटो सेल इज example, अ this आउटपुट गिविंग position डिवाइस। यू विल is different सिंपली from the राइट next फोटो सेल position, इज and डिटेक्टिंग so द on लाइट, throughout the disk. लाइट को डिटेक्ट करता है Light और shines through the आउटपुट slots, देता है। and the ठीक है, और photosensor ये on the डिस्क other हमेशा side detects कॉन्टिन्यूसली the रोटेट कर रही combination है। of आप देख रहे light हो, and इस dark एनिमेशन areas, को दिखाने का पर्पस ये है translating कि that रोटेशन unique एक के बाद position एक into होती है। computer ना धीरे code. हम बोल रहे हैं उतना धीरे काम नहीं The होता, angular position एकदम से data वो is रोटेशन then करने sent लग जाती onto है, the कितने भी comparator. रिवोल्यूशन आरपीएम पे कर रही है, वही हमें मेजर As a करना है। last यहाँ पे एक note, शाफ्ट you कनेक्टेड should है, know that the ठीक है, number तो of उस शाफ्ट में कितनी रोटेशन columns आई and है, rows of slots determine. ठीक है, वो आप उसे मेजर कर रहे हो। तो एक बार लाइट के सामने डार्क एरिया आ रहा है तो लाइट पास नहीं होगी। जब लाइट के सामने क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट एरिया आएगा, लाइट पास होगी, ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। फोटो सेल देगा आउटपुट वोल्टेज की फॉर्म में। आउटपुट वोल्टेज हमेशा साइन वेव मिलेगी, साइन वेव से वो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट होगी स्क्वायरिंग डिवाइस से। उस स्क्वायरिंग आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू से, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप उसकी डिस्प्लेसमेंट रोटेशन फाइंड कर सकते हो कि कितने रोटेशन आरपीएम हुई है। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी निकालनी है कि क्लॉकवाइज रोटेशन थी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो फोटो सेल लगाने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर एनिमेशन में एक ही फोटो सेल लगा हुआ है, अभी आप देख रहे हो एक ही फोटो सेल है, समझाने के लिए कि ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मेजर कर रहा है। लेकिन हो सकता है दो आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी मेजर करनी है, एप्लीकेशन ऐसी है, ठीक है, तो उस समय आप क्या कहोगे, आप एक दूसरा फोटो सेल लगा दोगे जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को मेजर करेगा। ठीक है, मतलब वो आउटपुट ऐसा देगा जो एक वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है, और उससे आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ही निकाल रहे हो। दिस इज फाइनली द लीनियर एनकोडर। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये जो हमने शाफ्ट से कैसे कनेक्टेड किया है। किसी भी डिवाइस को आप अल्टीमेटली यूज करोगे तो कनेक्शन के बाद ही यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे टैकोमीटर है, टैकोमीटर को जब तक आप शाफ्ट के पास जाके कनेक्शन स्टार्ट नहीं करोगे, स्पीड को मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम फॉर द लीनियर एनकोडर। दिस इज अ डायरेक्ट पोजीशन मेजरमेंट विद लीनियर एनकोडर। ठीक है, तो लीनियर एनकोडर का डेफिनेशन मैं आपसे बार बार ये इसीलिए पूछ रही थी बिकॉज इट इज मेजरिंग दी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओनली। और ये जो अब आप देख रहे हो पूरा एनिमेशन, ये किस में यूज हो रहा है, दिस इज दी बेड ऑफ द सीएनसी लेथ, दिस इज द लेड स्क्रू, ये लेड स्क्रू है, और उसके ऊपर ये क्या है, अभी जो एनिमेशन देखो आप, एनिमेशन में क्या मूव कर रहा है, वर्क टेबल। सो ये वर्क टेबल की कितनी पोजीशन चेंज हुई है, कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है। आप, हमने क्या बोला था कि लेड स्क्रू के साथ आप एक एनकोडर कनेक्ट करके रखोगे, एंड दिस एनकोडर विल हैव दी, दिस इज द हाउसिंग पार्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आएगा एनिमेशन में धीरे धीरे। ठीक है, वो लेड स्क्रू से कनेक्शन एक बार वो लाइट को पास करेगा, एक बार पास नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक बार में ग्लास का स्केल यहाँ पे फिटेड है। ठीक है, तो ग्लास स्केल इज with fine grating periods is mounted here. This is the block and measuring method, absolute measuring method भी है। ठीक है, then we will take this animation fast क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये connected के बाद ही वर्क करेगा। So when the power is switch on, the position is at the standstill। ठीक है, ये एनिमेशन है पूरी, incremental track, measuring method, after power is switched on। ठीक है, this point is clear। then फोर फील्ड स्कैनिंग, ये आउटपुट दिखा रहा है आपको, ये आउटपुट एक साइन वेव में देगा, हमेशा फोटो सेल आउटपुट साइन वेव में देगा। हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक स्क्वायरिंग डिवाइस अटैच करके जो कि एक स्क्वायर वेव मिलेगी। ठीक है, तो यही इसको दिखाने का पर्पस है कि ये लीनियर कैसे होता है और रोटरी कैसे वर्क करता है।